monthly meeting that we have, and thank you. And every month we meet on the 18th of every month, and today is 18th of May. So every 18th we meet from 7 to 9, and this is our monthly meeting for May. And what could be a better topic to discuss when we are all struggling with heat? Different parts of the countries are dealing with heat wave. We can't think of any better topic than heat and heat waves and cities. And not just because we are all struggling, but the fact that a lot of workers, lot of communities, people who are working outdoors, people who are actually struggling with the heat in their livelihoods and daily life, they are also struggling. So this meeting is very important for us to kick start and improve our understanding on the issue, but also to go deeper into the issue and understand about the heat wave, but what is that can be done, and what are the some of the ideas that we are getting from the gathering here. मैं फिर से इसको हिंदी में दोहराता हूँ. हमारा मीटिंग जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स होगा. हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा ट्रांसलेशन कोई भी भाषा का हमारे साथ में रहे. सभी का स्वागत यहाँ पे. नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब. हम शाम आज 18 तारीख है और हर 18 तारीख को हम NAPM श्रम जो अर्बन ग्रुप है NAPM का, उसके हवाले से हम मिलते हैं. और इस बार में इससे बढ़िया कोई टॉपिक हो नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग शहरों में हैं. लेकिन मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे गर्मी की हालत काफी खराब है, हीट वेव डिक्लेयर है. मैंने सुना था कि दिल्ली में बहुत बुरी हालत है. तो मई का महीना है, तो हमको लगता है कि इससे बढ़िया कोई टॉपिक नहीं. और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको गर्मी लग रही है, इसलिए भी कि बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे कम्युनिटीज और बहुत सारे साथी जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजगार में हीट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज को जानने की एक कोशिश. लेकिन सिर्फ जानने का नहीं मकसद है हमारा आज का. मकसद ये भी है कि उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नीतियां हैं, और उसके ऊपर क्या काम करने की जरूरत है. उसके लिए आज की मीटिंग. एंड वी हैव अ वंडरफुल पैनल. आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस द पैनल ऑल्सो. आप सब लोग जानते हैं जो हमारे बीच में पैनल मौजूद है, उनका कोई परिचय की जरूरत नहीं है. बट क्योंकि मैं मीटिंग चला रहा हूं तो उनका परिचय नहीं करूंगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी. तो उसको हम सॉल्व करने के लिए एक बार मैं सभी का परिचय कर देता हूँ. तो हमारे बीच में है सौम्य दत्ता जी, जो जिनको आप सब जानते हैं, जो पीपल्स साइंटिस्ट हैं और क्लाइमेट के अलग अलग मुद्दों पे हमारे साथ वो जुड़े रहे हैं. नासेज NAPM के नासेज में वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. और नेशनल, इंटरनेशनल, UNFCCC प्रोसेस, कॉप प्रोसेस में क्या बोलते हैं, वर्कर्स इश्यूज और कम्युनिटीज के इश्यूज को लेके सौम्य दत्ता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है. सौम्य दत्ता, आपका स्वागत. आई एम क्विकली इंट्रोड्यूसिंग ऑल द स्पीक. Thank you, sir, for joining us. Soumya Datta, as you all know, is part of NAPM NASEG, but he has played an extensive role across different platforms, including regional, local, community, but also at international levels on issues of climate change and its impact on people and communities, especially even at the UNFCCC and COP forums. And I mean, from my side, I'm saying that him and Raghuji were both the first people from whom I learned about heat wave. So I can say that we have an excellent set of panels here, folks here. Second, I think Apekshita has joined. I will quickly introduce her. Apekshita, I think you are here. So Apekshita is the founder for Heatwatch. It's a wonderful organization that's exclusively working on heat and heat's impact on workers, on communities, and they've done a wonderful body of work over the last 2-3 years. I didn't know she started with journalism. I just got to know that now, but her work is also on community-led research, advocacy, program design, and so on and so forth. अपेक्षिता जो है वो हीट वॉच की फाउंडर है, हमारे बीच में मौजूद है. पिछले 2-3 साल में हीट के ऊपर नेशनल लेवल पे कम्युनिटीज के साथ
कम्युनिटी के मसलों को आगे बढ़ाने के लिए काफी इसके ऊपर काम किया है अपेक्षिता ने। हीट वॉच अरविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। I think his connection has gone. He'll join back. Is the Shujay or Bhumi, is anyone admitting the people? There are a lot of people waiting also. Yeah, admitted all the people. Yeah. 75 है already in the room. 83, including us. Four more. Let's wait for Arvind to come back, rejoin. जैसा मुझे लग रहा था कि गलत टाइम पे ही बत्ती जाती है यहाँ पे, तो आई एम सॉरी, मेरे यहाँ से लाइट कनेक्ट हो गया और मेरा लैपटॉप ऐसा नहीं है, ना मेरा इंटरनेट ऐसा है जो कंटिन्यू करेगा, तो सॉरी फॉर दैट। अपेक्षिता, मैं आपका इंट्रोडक्शन कर रहा था और शायद मैंने कर दिया, पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना। बट आपका काम, आप फाउंडर हैं ईट वॉच की, और आपने पिछले कई सालों में हीट को नेशनल डिस्कोर्स और बातचीत में लाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, और आपका काम कम्युनिटीज के साथ भी है, और आपका काफी एक्सपीरियंस जर्नलिज्म का है, तो रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। हमारे बीच में रघु जी हैं जो अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनका फोटो हमने देखा है, तो हम वैसे सब उनको जानते भी हैं। ही इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिल्ली साइंस फोरम एंड ही इज आल्सो contributed heavily into for the public understanding of science and democratizing knowledge and science, and he is someone who has done extensive work on environment, climate change, renewable energy, and a lot of other spaces. तीन साथी हमारे बीच में मौजूद इसलिए हैं, एक और, सॉरी मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में फंस गया, पर सौम्यदा अगर मैक्रो लेवल पॉलिसी डिबेट्स डिस्कशंस, अगर इस पे आप एक एक हमको आइडिया दे पाए, इंक्लूडिंग नए एफर्ट्स नेशनल लेवल पे सरकार की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी के रूप में जो एफर्ट्स लिए गए हैं, खासकर इनफॉर्मल वर्कर्स और अर्बन पुअर कम्युनिटीज के लिए, सो इफ यू कैन प्रेजेंट द macro level policy discussions that are happening, that would be great, Someda. Apekshita will come in with actual examples of how do you engage, how do you bring the issues of workers to the forefront, and I think हम काफी अपेक्षिता और हीट वॉच के काम से जान पाएंगे कि क्या क्या कोशिश चल रही है देश में अलग जगहों पे, जिसके साथ हम जुड़े, एनएपीएम श्रम करके हम जुड़े, क्योंकि हम अलग अलग शहरों पे हैं एंड वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट एंड जॉइन इन द एफर्ट्स। रघु जी से एक रिक्वेस्ट ये होगा कि हम आगे क्या काम करें और क्या क्या एग्जाम्पल्स और चल रहे हैं जिनमें वो शामिल हैं, तो वो भी शेयर करेंगे। तो एनएपीएम श्रम करके इसमें हम आगे की दिशा, ये नहीं कि सिर्फ वेबिनार और डिस्कशन सुने और हम आगे गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पे कुछ ठोस सजेशंस, if Raghu ji can help us come to, that would be very good, of what we can do as an APM Shram, and that would be a request to Raghu ji. So what we were initially thinking was that we will take 15 minutes speaker each. Someda, 15 minutes to you, Apekshita 15 minutes to you, and then 15 minutes to Raghu ji. Questions can come in the chat and then we can open it up, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे साथियों को स्पेसिफिकली हमने बुलाया कि आप आए सुने, तो उनके सवाल बहुत होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट की उसको फिर हम साथ में लेके रेस्पॉन्ड करेंगे, if that's okay. I change my format because then I can see the, I'm doing through mobile phone, so I can see the time also. जी सर, perfect. Over to you, Soumyada. Okay, सबको जिंदाबाद, good evening, सलाम, जोहार, and सबके ये जो आज, and I will mix Hindi and English because if I try to, यदि मैं ट्रांसलेट करूंगा तो समय सबको बहुत ज्यादा जाएगा, तो मैंने दोनों भाषा में कंफर्टेबल हूं, तो मैंने दोनों में मिक्स करके बताऊंगा। तो हीट वेव, पहले तो मुझे बोलना है, जो हीट वेव का जो हम शब्द सुन रहा है
और ये सब जो है, दिस टर्म is very common now, but this itself is wrong because what happens is not a heat wave. Everybody uses the word heat wave. So मेरा recording on नहीं किया है शायद. Shall Okay, we not be recording? शुजय रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ चालू रिकॉर्डिंग किया ऑन या है। इसमें कुछ हाँ, सिग्नल recording is नहीं है. on. तो सही चल रहा है. ओके तो ओके, इसमें दिखाई ये नहीं. ये जो हीट वेव जो मैंने बोल रहा था, क्योंकि कोई हीट का लहर तरंग चलना, दिस इज नॉट एक्चुअली द केस. व्हाट हैपेंस इज हीट बिल्डअप होने से, मैं इसका थोड़ा सा इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका यदि समझ ही नहीं रहेगा तो बिल्कुल गलत दिशा में हम एक्शन भी करेंगे. बेसिकली हीट कितना आया वो एक संबंध है, कितना अनकंफर्टेबल होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, बट इट्स नॉट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. मतलब एक्स अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाएगा एक्स टाइम तो एक्स अमाउंट टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इससे देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप. क्योंकि हीट में एक टोटल हीट है जो आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, एक सेंसिबल हीट है. और ये मैंने इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो हीट का स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट, जो हम कैसे कम करना है, उसको समझने के लिए हमें सेंसिबल हीट को समझना पड़ेगा. क्योंकि जितनी लोगों ने एडवाइस करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं, एनजीओज एक्टिविस्ट बहुत गलत है इसमें, क्योंकि वो बेसिकली हीट वेव का कॉन्सेप्ट में चलते हैं. तो एक नंबर ये है. 2 नंबर, एक्चुअली किसी भी एनी ह्यूमन बॉडी और दैट मैटर इवन एनी अदर एनिमल बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी is stressed out not just because of the available heat, not just because of the temperature. मतलब कितनी तापमान हुआ, वो 40 डिग्री हुआ, 1 सेल्सियस, 41 हुआ, 42 हुआ, दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. इसमें 4 चीज काम करते हैं, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा. 2 बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स है, जो है जो कि टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर है वहां का 2 मीटर एयर टेम्परेचर, मतलब उस जगह का सरफेस से 2 मीटर ऊपर शेडेड जगह में टेम्परेचर क्या दिखा रहा है हवा का. और इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर काम करते हैं जो हमें अभी तक कंसिडरेशन में वी आर नॉट टेकिंग. वी मीन्स द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. इट्स बीइंग कंसिडर्ड फॉर लॉन्ग. लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अस हैव हैड डायलॉग्स विद द आईएमडी पीपल, बट ये अभी नहीं है. तीसरा जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करना चाहूँ, जैसे अरविंद ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, जो ये कब से इसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल में क्या इसका कब से शुरू हुआ, क्या इसका असर पड़ा. देखिए ये जो हम लोगों ने, क्योंकि मैं 2008 से यूएन का कॉप का फॉलो कर रहा हूँ और उसमें जाता हूँ, इंटर सेशनल हो, क्लाइमेट नेगोशिएशन में हो, बहुत एक्टिवली. बेसिकली 2000 कोई सबको रिक्वेस्ट है, कुंडाला राव जी आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो बात नहीं कर रहे प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू. तो ये जो 2003 में यूरोप में जो हीट वेव आया था, देखिए भारत में दक्षिण एशिया में, जब भारत का बात करते हैं, मोरलेस बांग्लादेश श्रीलंका सिमिलर कंडीशन फेस करते हैं. नेपाल का थोड़ा सा अलग है, लेकिन नेपाल का भी तराई का हिस्सा में हीट वेव्स आते हैं, पाकिस्तान में तो आती है. तो ये जो कंडीशन 2003 में जब यूरोप में मैसिव हीट वेव आया था, आज का दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उससे कम ही था, लेकिन उस हीट वेव से लगभग एक्सेस डेथ का जो हिसाब यूरोप में था वो 70,000. तो दैट गिव ए वेरी बिग जॉल्ट टू द क्लाइमेट कम्युनिटी. ये एयर 5 से, मतलब जो आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट 5 से अभी 6 आ गया 2022 तक, लेकिन जब 5 निकला था तब से ये बार बार दिखाया जा रहा है ये हीट. मैं अभी उसी का टर्म ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्म नाउ. जो हीट इम्पैक्ट बाय हीट वेव्स आर द फास्टेस्ट राइजिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट. और ये सिर्फ आईपीसीसी का पहले सीमाबद्ध था, ना उसमें लिमिटेड था, बट व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज्ड दिस एक्सटेंसिव स्टडी in 2020 June in India, and Mr. Harshavardhan was the Minister of Earth Science, he released it. Even the Indian study showed the heat waves are going to be the fastest rising climate impact. और उसमें काफी आप यदि देखेंगे, काफी क्या बोलेंगे, डरावना चित्र, काफी फ्राइटनिंग पिक्चर्स है जो हाउ मच हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग. उसका एक सिंपल कारण है, क्योंकि हीट मतलब टेम्परेचर, जो मैंने अभी थोड़ा सा इसमें साइंस में आ जाऊं, जो टेम्परेचर कितना रहेगा और कितनी दिन वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर दिन में भारी करते रहते हैं.
सुबह थोड़ा ठंडा होता है और दिन में बढ़ते रहते हैं, फिर शाम के बाद कम होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर से इंडिकेट किया जाता है कि किसी जगह में हीट वेव कंडीशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। और ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी साल में 300 दिनों में, वो जो ग्राफ है, उस ग्राफ को यदि आप समझेंगे तो देख पाएंगे कि बहुत कम टेम्परेचर राइज से, एवरेज टेम्परेचर राइज से number of heat wave days will drastically increase. And that's exactly the reason all studies are showing that heat waves are the fastest rising climate change impact. Of course, the second fastest rising is extreme heavy rainfall and flooding, but that's a result of the heat and the total heat and the temperature. तो ये जो हीट और टेम्परेचर इसका रिश्ता है, ये 2003 के बाद ग्लोबल अटेंशन में, जैसे मैंने बोला, यूरोप में 70,000 एक्सट्रेस डेथ के बाद काफी धक्का लगा, यूएन लेवल पे काफी चर्चा शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी सरकार और भी सरकार अपने अच्छा बन के कुछ बना लिया। बट आई हैव डन एन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन इन दिस इन आवर वन ऑफ द दिस एनर्जी फाइनेंस कॉन्फ्रेंसेस इन मद्रास आईआईटी, which used to CFA used to do with Madras IIT. Many of our environment policies came as a result of UNFCCC adopting some policy, adopting some framework. हमारा जो क्लाइमेट एक्शन प्लान वो आया है बाली एक्शन प्लान के बाद से, बाली रोड मैप के बाद से। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो जब यूएन लेवल पे ये हीट मतलब जो हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर, लॉन्ग पीरियड एक्सपोजर, इसको जब एक बहुत सीरियस इशू लिया गया, तो इंटरनेशनली इसको बहुत सारे देश इसको ऊपर अलग अलग काम करना शुरू किया, अपना देश का पॉलिसी। जो मैंने बोला 2003 का यूरोपियन हीट वेव वाज अ सॉर्ट ऑफ मैसिव शॉक एंड अ वेक अप कॉल। भारत में जो सभी को ये जानकारी था कि यूरोप में हुआ है, यूरोप जैसे हमसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, इवन सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप जो स्पेन इटली का मेडिटेरेनियन हिस्सा है, वो भी हमसे नॉर्दर्न हिस्सा में है, लैटिट्यूड में, तो ठंडा होना चाहिए। तो उनको वहाँ मैसिव डेथ में, ऑफ कोर्स ये है जिस किस्म का द काइंड ऑफ टेम्परेचर दैट वी एंड्योर, यूरोप विल बी इम्पैक्टेड मच मोर बिकॉज द बॉडी इज नॉट एडजस्टेड, और वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो भारत में पहला बार इसको बहुत बड़ा धक्का हुआ 2010 में, इफ यू रिकॉल, अहमदाबाद हैड ए मैसिव हीट वेव। अहमदाबाद सिर्फ शहर का नहीं, लेकिन अहमदाबाद के आसपास का एरिया एक मैसिव हीट वेव से जूझा, मैंने उनको, इट वाज हिट बाय अ हीट वेव, एंड दैट हीट वेव किल्ड मोर देन 1300 पीपल इन दोज फ्यू डेज। तो ये भारत के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल भारत के लिए था। जैसे 2003 का यूरोपियन हीट वेव एक ग्लोबल वेकअप कॉल था, ऐसे ही यहाँ सिमिलर था। और इसके बीच बाद में जो 2019 के बाद से आईपीसीसी का AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 जब आने लगा, तब साइंटिफिक कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर्स कम्युनिटी, द पॉलिसी जो बनाते हैं और उनको जो एडवाइस करते हैं, इन सब में ये अवेयरनेस काफी बढ़ा, ये हीट का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दैट इज द पीरियड many countries started making their plans or addressing the heat stress. जो increasing heat stress हो रहा है, उसको address करने के लिए बहुत सारे देश अपना policy, in fact one good thing is Bangladesh did their climate policy before us, before India, but afterwards it degenerated, that's another matter. तो भारत कोई अपना एरिया में भी पायनियर नहीं है, बट अहमदाबाद हीट वेव वाज ए मैसिव वेकअप कॉल, जिसके बाद अहमदाबाद भारत का पहला शहर था, कोई भी राज्य कोई भी शहर के पहले 2013 में अहमदाबाद शहर एक हीट एक्शन प्लान बनाया। तो ये अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान, there are deficiencies, there are problems with that, but at least Ahmedabad heat action plan was the first one which tried to understand that heat is distributed in different ways, different places within the Ahmedabad city are impacted differently. ये सारे उसमें है, and this consideration that human body is not impacted only by the temperature, the maximum temperature, but also by the relative humidity, by the wind that is blowing and the surface radiation. तो इसमें दोनों चीज जो मैंने बाद में बोला, ये दोनों तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कम से कम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दोनों फैक्टर को दिखाया। The unfortunate part in India's entire heat actions are
ऑल द हीट एक्शन प्लान आप देखेंगे, अभी दिल्ली में 2024 में था, 25 में एक मॉडिफाइड ड्राफ्ट आया, 26 में बोल रहा है, तो 26 का अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट 25 का दिल्ली हीट एक्शन प्लान 25 इज इन पब्लिक डोमेन। हाँ, अहमदाबाद का जो मॉडिफाइड वर्जन 2023 का वो पब्लिक डोमेन में है। तेलंगाना हैज मेड अ स्टेट लेवल हीट एक्शन प्लान। राजस्थान हैज गॉन वन स्टेप अहेड and made a heat and human health action plan. So I think that's a very positive step, क्योंकि हीट का एक सिर्फ फिजिकल फेनोमेना जैसे यदि हम देखना चाहे तो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे का चलते भारत में भी एज इन द ग्लोबल सिनेरियो, भारत में एज आई एम रिपीटिंग, आफ्टर 2010 अहमदाबाद हीट वेव विच कॉज मैसिव डेथ्स, और आपको याद होगा उस टाइम न्यूज में आ रहा था इवन बर्ड्स वर ड्रॉपिंग डेड व्हाइल फ्लाइंग, इतनी हीट और डिहाइड्रेशन हो रहा था, चिड़िया जो फ्लाई कर रहा था वो भी ऊपर से गिर के मर रहा था, माने मर के गिर रहा था, तो वट एवर इट इज। तो दैट वाज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच गिव ए शॉक। तो उसके बाद से भारत का बहुत सारे सिटी, अभी 100 से ऊपर सिटी और कुछ कुछ राज्य अपना हीट एक्शन प्लान बनाया। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्ट दैट आई एम रिपीटेडली सेइंग। देखिए, मैं अभी बैठा हूँ महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का कोस्टल एरिया, रत्नागिरी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं। If I show you this, this is called a thermohygrometer. आप देखेंगे इसमें अभी यहाँ का टेम्परेचर आपको लगेगा तो बहुत कंफर्टेबल है, 31.5 डिग्री, राइट? कैन यू सी दिस? सम पीपल, द टेम्परेचर इज 31.5, but I'm feeling very uncomfortable because the relative humidity is 75%. So this is, and I'm feeling actually even with the fan running, it's very uncomfortable, and there is already a heat stress. So why is this? Because the body, human body, there are three ways the human body cools itself. And human body का जो हमारा ब्रेन में इसका माने इसका नीचे एक हाइपोथैलेमस है, वो कंट्रोल करते हैं बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर। और जब भी कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है अब 34-5, तब वो ब्लड को माने हार्ट को ऑर्डर करते हैं जो पंप मोर ब्लड, and if it cannot be cooled, then the heart is ordered to do more pumping, and anyone with a defective or little bit of a problematic heart, there is a chance of heart failure. भारत में एक मेजर प्रॉब्लम है हीट वेव डेथ को, हीट इम्पैक्ट डेथ को माने 99% केसेस में हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर बोल के सर्टिफाई किया जाता है। दिस इज द रीजन, द फर्स्ट थिंग टू फेल इज द हार्ट, द सेकंड थिंग इज टू फेल इन ए हीट स्ट्रेस इज द किडनी, then बाकी organ भी fail करते हैं। And the reason is if your hypothalamus loses control, and 106 point something degree Fahrenheit में the hypothalamus loses control। तो ये जो फैक्टर्स है, भारत का मौसम विभाग, जिनके पास, मैं ये बोल रहा हूँ, इनके पास ये पूरा जानकारी है, इनके पास ये पूरा समझ है, उनके पास हजारों करोड़ों का बहुत सारे वेदर स्टेशन है, लेकिन उनका जो वार्निंग, जो हीट वेव वार्निंग, उसमें ये नहीं है। दिस इज ए मेजर चैलेंज फॉर अस, जो भारत में हीट वेव वार्निंग में ह्यूमिडिटी को कंसिडरेशन ही नहीं किया गया। इसको बात चल रहा है जो मैंने पहले बोला, ये इमीडिएटली जरूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हुआ है, इफ एनीबॉडी हैज सीन द रिकॉर्ड ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर फ्रॉम 2023, globally sea surface temperatures have broken all previous records by a very large margin, very large margin। So इतनी गर्म तीनों सी है। तो भारत का जो पेनिसुलर इंडिया का 3 साइड में समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, जिसको कलेक्टिवली नॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन बोला जाता है, इससे मैसिव ह्यूमिडिटी, मैसिव मॉइस्चर पंपिंग हो रहा है, क्योंकि हम कुछ कुछ चीज को, पानी को गर्म करेंगे तो उससे भाप बन के उड़ेगा, एयर इज हॉटर, वार्मर, तो वो एवरी 1 डिग्री। आपके पास कंक्लूड और कंक्लूजन की तरफ मूव करने के लिए 3 मिनट जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो ये जो कंडीशन है और ये हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों ग्लोबल वार्मिंग का चलते बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैं बार बार हीट में आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो हम मेजर करते हैं वो हीट को बिल्कुल ही मेजर नहीं करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये जो दोनों चीज बढ़ रहा है, इसको हमारे पॉलिसी लेवल में लेने का अभी एक, आई थिंक इट इज फार बियॉन्ड द राइट टाइम। 10 years ago this should have been taken into the policy, that is one very clear recommendation। दूसरा, जबकि भारत का मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस का रिपोर्ट स्टडी बोल रहा है कि हीट वेव्स आर द फास्टेस्ट राइजिंग एंड बाय 2050
आई थिंक इट इज अराउंड 5 or 6 times इट विल इंक्रीज, जिसका कारण मैंने बोला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड में जो चेंज होता है। लेकिन भारत का ये जो आप पूरी हीटवेव को साइक्लोन को फ्लड को सभी का असर बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज में। लेकिन अभी सिर्फ हीट का ही बात करें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसको चलते जो इस असर होता है, जो हीट वेव एक डिजास्टर हो रहा है, तो भारत का जो कस्टोडियन मिनिस्ट्री फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो है होम मिनिस्ट्री। उसने नेशनल स्तर पे एनडी एक्ट में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, हीट वेव को, जो मौसम विभाग जिस डिफेक्टिव जो बोलते हैं, मौसम विभाग सिर्फ एयर टेम्परेचर देखते हैं, दैट्स अ डिफेक्टिव मेजर, इवन दैट डिफेक्टिव मेजर इज नॉट एक्सेप्टेड और एज ए नोटिफाइड डिजास्टर। मतलब हीट वेव यदि मौसम विभाग बोलेगा भी, तो आप मेरा डेथ हो जाए तो मेरा जो नियर एंड डियर वंस, उनको जो 4 लाख रुपया मुआवजा व हीट वेव डिक्लेयर होने से जो एक गवर्नमेंट मशीनरी का एक्शन में आना, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो वन ऑफ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट इन पॉलिसी is for the IMD and for the NDMA, for the National Disaster Management Act के अंदर NDMA को नंबर 1 ह्यूमिडिटी को इंक्लूड करना इज ए अर्जेंट नेसेसिटी। हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर करना इज एन अर्जेंट नेसेसिटी। तीसरा, बहुत सारे जगह में जो आज के दिन में मौसम विभाग के पास, बिकॉज भारत में मेट्रोलॉजिकल बॉडी में सबसे ऊपर है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस, उनको मच मोर ग्रैनुलर डेटा तैयार करने का जरूरत है। क्योंकि आप यदि देखेंगे दिल्ली में, आई एंड बाय इन 1 and 2 minutes, दिल्ली में मेजर वेदर स्टेशन है सफदरजंग एयरपोर्ट में, 500 एकड़ का ग्रीनरी है। हाँ, अदर स्टेशन है पालम में, और एक स्टेशन है इंदिरा प्रियदर्शी भवन जोड़बाग में, लोधी गार्डन का बगल में। तो क्या वो जो आपको रिकॉर्ड दे रहा है टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, एक मजदूर, एक स्ट्रीट वेंडर, एक आजादपुर मंडी में पोटर, उनको जो कंडीशन में काम कर रहा है, इसमें जमीन आसमान फर्क है। तो द थर्ड मेजर रिक्वायरमेंट, if we have to save workers and particularly informal sector workers, of course I have seen in factories formal sector workers also getting terribly impacted, but at least जिनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, उनको सुरक्षा के लिए कम से कम माइक्रो लेवल पे, जिसको हाइपर लोकल बोलते हैं, उस हाइपर लोकल मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट्स, नॉट ओनली ऑफ एयर टेम्परेचर, कम से कम एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों को मेजरमेंट के आधार पर एक पॉलिसी लेना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल नहीं, जो जिसने इतना सिंपल, दिस कॉस्ट अराउंड 700 रुपीज। So of course this is not as accurate as lakhs of rupees instrument by the IMD, but this can give you a reasonable measurement. तो मैंने उसमें नहीं जाऊंगा जो कैसे कम्युनिटीज अपने आप को सेव कर पाते हैं, जो अपना ट्रेनिंग में मैं बहुत जगह में कराता हूँ, बहुत सारे करीब 8-10 ट्रेनिंग, 12 ट्रेनिंग मैंने देश भर में किया है, जो if the government is not acting immediately, communities can themselves train very easily and save them from the worst impact of the heat. इसका बहुत सारे आसान तरीका है। और लास्ट कमेंट, आज के दिन में और स्टडी कर रहा है, बहुत सारे एनजीओ है, सिर्फ स्टडी के बाद स्टडी ही करे जा रहा है, ये क्या हुआ, वो क्या, हीट का क्या इम्पैक्ट। आज के दिन में we know almost all the impacts of heat waves. There are extensive studies done in 100 countries. We know what to do, where to do what. आज के दिन में it is high time that we get down on 2 fronts. One, with the communities who are suffering the most. The second, with the governance structure of climate change. And in India, this is one part is the meteorological department, one part is the Ministry of Environment and Forest, one part is the Ministry of Arts Science. So in these three, I don't have time to explain what are the points, but 2-3 I already explained. In तीनों फ्रंट में हमें इमीडिएटली काम करने का जरूरत है। और जो क्लाइमेट क्राइसिस व क्लाइमेट जस्टिस सर्कल में जो बहुत पॉपुलर कहावत है, द बेस्ट टाइम टू एक्ट वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। थैंक यू। थैंक यू सौम्यदा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से इसका हमको पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया, हीट वेव्स और हीट स्ट्रेस रादर क्या है,
इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और ये आया कहाँ से। और मेरी एक धारणा थी कि इंडिया का हीट एक्शन शायद इंटरनेशनल डिस्कोर्स से आगे चल रहा है, और हमारा हीट एक्शन प्लान्स कभी कभी बोलते हैं कि अच्छा नहीं, हम जैसा भी है ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू उसको करेक्ट करने के लिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम्पल के साथ दिया कि ये जरूरी नहीं है, हमारा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम जो कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसमें और करने की बहुत गुंजाइश है। और लास्ट पॉइंट आपका कि इसमें और काम करने की जरूरत है, आई थिंक दिस इज वेयर अपेक्षिता कैन कम इन एंड हेल्प अस। अपेक्षिता, ओवर टू यू। सॉरी, हम विल डू हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सो you can either speak in one and then summarize later, or you can do a mix like Soumya. So over to you on that. जी। थैंक यू अरविंद। नमस्कार, जिंदाबाद। जोहार साथियों। सौम्या ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन, और मैं कहूँगी इंट्रोडक्शन से ज्यादा ही हमें जानकारी दी है हीट वेव्स और गर्मी के बारे में। तो मैं कुछ पॉइंट्स उनके आई विल टेक इट फॉरवर्ड, और कुछ मैं नए मुद्दे लाऊंगी अपने मेरे सेक्शन में। एंड जस्ट लाइक हिम आई विल डू अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है, ये उम्मीद है। अरविंद का थम्स अप आ गया। बिल्कुल साफ आ रही है, जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे सौम्यादा कह रहे थे कि सिर्फ एम्बियंट टेम्परेचर की बात नहीं है गर्मी, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, खास करके ह्यूमिडिटी। इंडिया जैसे देश में, जो एक कोस्टल देश है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और ये आईएमडी ने थोड़ा बहुत फील्स लाइक इंडेक्स लाकर इसको मापना और इसके बारे में कम्युनिकेट करना शुरू किया है। पर इसका प्रभाव हीट वेव की डेफिनेशन पर नहीं पड़ा है। तो हीट वेव की डेफिनेशन आज भी जो आईएमडी की तरफ से है, वो आप देख सकते हैं आईएमडी के वेबसाइट पे। वो कोस्टल, हिली और प्लेन्स के लिए अलग अलग तापमान पे वो हीट वेव को डिफाइन करते हैं कि ये हीट वेव है। और ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जब तक हीट वेव का अनाउंसमेंट नहीं होता, until states are told by IMD that this is a heat wave, almost no protections come in place. Even though protections are very limited, this lack of declaration of heat wave contributes to further reduction in any kind of protection. दूसरी चीज ये है कि नेशनल लेवल पे, जैसे सौम्यादा कह रहे थे कि हीट वेव डिजास्टर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये भी एक डिफेक्टिव नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन अकेले से कुछ बहुत चीजें नहीं बदल जाएंगी, पर एक चीज जो बदलेगी वो ये है कि स्टेट्स के पास ज्यादा फंडिंग होगी मेजर्स लाने के लिए, टू बी एबल टू एक्ट ऑन हीट वेव्स, जो फिलहाल एक बहुत ही रिएक्टिव रूट के तरीके से चल रहा है। फिलहाल गाइडलाइंस आ जाती हैं, हीट एक्शन प्लान्स हैं कई स्टेट्स के, 100 सिटीज में लगभग हीट एक्शन प्लान्स आ चुके हैं। और मैं उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगी कि हीट एक्शन प्लान्स में क्या है और क्या नहीं है। और ये जिन जिन स्टेट्स ने अपने स्टेट लेवल पे हीट वेव को नोटिफाई किया है एज अ डिजास्टर, उनके पास अपने स्टेट का 10% फंड होता है उस पर एक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए तमिलनाडु या महाराष्ट्र या उड़ीसा, जिन स्टेट्स हैं जिन्होंने हीट वेव को नोटिफाई कर रखा है, उनके पास वो 10% फंडिंग अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ा गैप जो हमारे हीट एक्शन प्लान्स में ये है, कई सारे गैप है, मैं उस पर चर्चा हमारी बहुत जरूरी है। वो ये है कि हीट एक्शन प्लान्स की कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। मतलब जो भी गाइडलाइंस हीट एक्शन प्लान्स में लिखी गई हैं, वो बस एक सजेशन है, वो एक मात्र इस तरीके की बात है कि ये आप कर सकते हैं, पर अगर आप ये ना करें तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, ना आपके ऊपर कोई पेनल्टी है, ना आपको कोई बोलेगा कि अरे आपकी वजह से या आपके ना करने की वजह से हमारी सोसाइटी में इस तरीके के मजदूरों की डेथ हुई है, या फिर वो इस तरीके की उनकी हालत हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हीट एक्शन प्लान की कोई फाइनेंसिंग नहीं है। दूसरी बहुत ही बड़ी बात जो हमारे सामने आ रही है कि उसका कोई भी लोकलाइजेशन या वल्नरेबल ग्रुप के साथ टारगेट या ट्रैकिंग नहीं है। मतलब हीट एक्शन प्लान्स, कुछ कुछ हीट एक्शन प्लान्स ये जरूर कहेंगे कि जो बुजुर्ग हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उन पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है गर्मी का। पर उस इम्पैक्ट से वो खुद को कैसे बचाएं, या हीट वेव या गर्मी के वक्त उनको किस तरीके के प्रोटेक्शन मिलेंगे,
इसका कोई जिक्र नहीं है हीट एक्शन प्लान में। लीगल फाउंडेशन नहीं है, जैसा मैंने बताया कि अ, अगर कुछ चीजें अप्लाई, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या लेबर डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट आगे वो चीज नहीं बढ़ाती, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसका क्या उन पे जुर्माना है, उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं है कि हीट एक्शन प्लान्स असल में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या इनमें खामियां हैं क्या खूबियां हैं, उस पर भी बहुत गवर्नमेंट का ज्यादा उस पर बिल्कुल भी चर्चा या बात नहीं है। दिल्ली का हीट एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है जो एक नया हीट एक्शन प्लान है, उसमें इन कुछ चीजों पे उन्होंने गौर किया है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ ये डिपार्टमेंट्स नहीं है जो हीट पर काम करेंगी, लेबर डिपार्टमेंट का भी रोल है। पर आज तक जितने भी कॉन्सल्टेशंस में मैं जुड़ी हूँ, और पूरे देश में बहुत कॉन्सल्टेशंस किए जा रहे हैं कि अच्छा हमें अब गर्मी पे करना क्या है, पर लेबर डिपार्टमेंट इन सारे कॉन्सल्टेशंस में मौजूद होता ही नहीं। तो जो हमारा देश, जो 90%, 90% वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल, there is no presence of labor department in terms of announcing heat wave protections, being able to enforce heavy protections, being able to hold businesses and industry accountable for what kind of protections they are providing to workers when they are working in not just extremely hot outdoor settings, पर और इंडोर स्पेसेस में भी क्रैम्ड, जो आपकी एमएसएमईज है, जो आपकी छोटी इंडस्ट्रीज है, जो जिस तरीके से हमारी हमारी बस्तियां बनी हुई है, उसी तरीके से वो टिन और एस्बेस्टॉस की बनी हुई जो हमारी छोटे मोटे हमारे जो बिजनेसेस हैं, वहां पे भी जिस तरीके से गर्मी ट्रैप हो रही है, और जो जो असर हमारे वर्कर्स पर हो रहा है, उस बारे में कोई बात और चर्चा नहीं है। जो इस साल की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हीट वेव को नेशनली डिजास्टर का करार दिया जाना चाहिए। और ये बहुत ये इस वजह से हुआ है क्योंकि देश के मजदूरों ने, देश के गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने और कई आउटडोर वर्कर्स ने इस बात को बहुत ही ज्यादा वो आगे आगे और बड़े स्तर पर लेकर जा रहे हैं, where they are highlighting the kind of impact that heat waves are having on extreme heat and heat waves are having on their own bodies, on their physical health, on their mental health, on their livelihood, on their expenditure। इन सारी चीजों पे जब हम हल्ला मचा रहे हैं, तब जाके सरकार में ये थोड़ी बहुत चीजें हमें कम से कम ये मौके मिल रहे हैं कि हम इन चीजों को आगे लेकर जा सके। इस बात पे मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहूंगी कि हमें जिस तरीके की रिसर्च सामने आ रही है, बहुत सारी रिसर्च है हीट वेव्स के ऊपर और एक्सट्रीम हीट के ऊपर, पर ऑलमोस्ट सारी रिसर्च में जो फोकस होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड लोग हैं, उस पर हमारी चर्चा बहुत ही कम। जिस तरह आप अगर सोचेंगे कि अगर हमें ये भी नहीं पता फिलहाल कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन पर गर्मी का क्या असर पड़ता है, या फिर जो आशाएं हैं, जो हमारे देश की हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी, हम उन्हें बहुत गर्व से बोलते हैं। हम हमेशा बोलेंगे कि आशाओं की वजह से इंडियाज maternal health mortality, infant health mortality has reduced. Asha workers are also working outdoors in extreme heat, but there is no focus on how can we protect Asha workers from extreme heat, how can we ensure that they are first protected, ताकि जाके वो बाकी की जो कम्युनिटी है उसका ख्याल रख सके। तो इस तरीके की जो रिसर्च है, इस पे जो आवाज उठाने की जरूरत है, वो बहुत ही कम है आज भी, जबकि हमें पता है सारे प्रोजेक्शंस के अनुसार कि इंडिया एक बहुत ही इम्पैक्टेड देश है, और आने वाले सालों में इंडिया की बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल अनलिवेबल हो जाएंगे। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है कि बाहर काम करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। उस पे मुझे एक और चीज पे फोकस करना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम शहरों के ऊपर है, और शहर में जो समुदाय और कम्युनिटीज अफेक्टेड है उनके ऊपर है। अर्बन हीट आइलैंड्स एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो ज्यादा कॉन्क्रिटाइजेशन, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ओपन ग्रीन स्पेसेस, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग, हर चीज को बिल्ड अप कर देना की वजह से हमारे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं। इन हीट आइलैंड्स का मतलब ये है कि इन ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हीट इतनी ज्यादा ट्रैप हो जाती है कि उस पर्टिकुलर जगह का तापमान आसपास के थोड़े हरे भरे इलाकों से ज्यादा होता है।
और हमारे सारे जो शहर हैं वो इसी डायरेक्शन में ऑलरेडी हैं और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पार्क्स, हम बहुत ही ना के बराबर पार्क्स बचे हैं, जो पार्क्स बचे हैं वो दोपहर में बंद होते हैं। ग्रीन स्पेसेस बहुत ही कम है, और इसमें भी एक बिल्कुल समानता नहीं है। जो अमीर हमारे देश के शहरों के इलाके हैं वो ज्यादा प्लान्ड होंगे, वहां ज्यादा हरे भरे पेड़ होंगे। और जो सेटलमेंट्स हैं, जो झुग्गियां हैं जहाँ पर गरीब इंसान रहता है, वो सारे जो वो जगहों पे गर्मी बहुत ही ज्यादा होगी। और इस पर काफी रिसर्च ऑलरेडी, इस पर भी काफी रिसर्च है जिसने पाया है कि these spaces are easily 5 to 6 degrees hotter than spaces which are greener, than say and than a densely than a park with native foliage. So there is research also on this which finds that the disproportionate impact on our communities is not just at the workplace, ना सिर्फ उनके काम करने की जगह पर उनके घरों पर भी। तो एक स्टडी ने ये पाया है कि जो हमारे मजदूर हैं वो जब काम पे पहुंचते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड पहुंचते हैं, क्योंकि उनके घरों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ बहुत ठंडा माहौल है। घरों में भी बहुत गर्मी है। तो किसी ने शायद चैट में एक सवाल उठाया था कि नाइट टाइम टेम्परेचर्स पे कौन बात कर रहा है, और नाइट टाइम टेम्परेचर्स भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि द इफ यू लुक एट द डेटा, नाइट टाइम मिनिमम टेम्परेचर पहले जितना होता था उससे अब ज्यादा हो चुका है। तो मिनिमम टेम्परेचर आर नॉट फॉलोइंग एडिक्वेटली टू गिव द ह्यूमन बॉडी रेस्ट। तो जो हमारे लो इनकम सेटलमेंट्स हैं वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अक्सर उनकी शिकायत ये रहती है कि हम सो नहीं पाते हैं ठीक से। और आप जब आपकी ह्यूमन बॉडी सो नहीं पाएगी, आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे, और दोबारा आप काम पे जा रहे हैं अगले दिन जहां पर आप उतनी ही गर्मी में काम कर रहे हैं, उससे बढ़कर गर्मी में काम कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे, उस बारे में भी हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जैसे सौम्यदा बता रहे थे कि बात सिर्फ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की नहीं है, बात ह्यूमिडिटी की भी है। और ह्यूमन बॉडी जब स्वेट करती है तब अपनी बॉडी को कूल डाउन करती है। एक उससे रिलेटेड बहुत जरूरी चीज है जो हम गर्मी से जूझने के लिए हम सब नेचुरली करते हैं, वो ये है कि पानी पीना और बाथरूम का एक्सेस होना, ताकि हम पानी लगातार पी सके। और रेस्ट होना, जहां पर हम अगर बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो हमें रेस्ट करने का, आराम करने का मौका मिले। ये तीनों चीजें हैं जो इंडिया के वर्कर्स के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और हम इस वक्त गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ काम कर चुके हैं, आशाओं के साथ काम कर चुके हैं, घर 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 पे डोमेस्टिक वर्कर्स जो जाती हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, ऐसे अन्य वर्कर ग्रुप के साथ हम काम कर चुके हैं। तो फिलहाल की जो हमारी रियलिटी ये है कि टेम्परेचर डेफिनेशन, हीट वेव डेफिनेशन, पॉलिसी में क्या बदलाव लाने हैं वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे लोगों के पास पीने के पानी की, टॉयलेट्स की, आराम की कोई सुविधा नहीं है। तो हम अडेप्टेशन की बात तो बहुत दूर की है, हम कोप भी नहीं कर पा रहे हैं गर्मी के साथ, गर्मी से। क्योंकि आप लोगों से बात करेंगे वो बोलेंगे कि पानी, जब पानी की सुविधा ही नहीं है या शौचालयों की सुविधा ही नहीं है तो हम पानी पिए कैसे। और जब गर्मी से जूझने का सबसे सबसे आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका पानी पीना है, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लेबर राइट्स की बात अब दोबारा गर्मी के एक पहलू, गर्मी के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि पहले ये सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आप गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, चाहे आप स्ट्रीट वेंडर हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर तरफ लोगों की शिकायत ये है कि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो हीट अडेप्टेशन और क्लाइमेट जस्टिस बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं, जब आप सच्चाई ये देखें जमीन पर ये है। तो ये सबसे पहली मुझे लगता है रिकमेंडेशन भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये चीज तो इतने सालों से मांगी जा रही है। सबसे पहला ये करने की जरूरत है कि ये जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों तक उपलब्ध हो, और वो और उनके साथ काम करने की जगहों पर नहीं, पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, कि कहाँ ये पानी, टॉयलेट, शेड, रेस्ट, इन चीजों की जरूरत अभी तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है। हमने बैंगलोर में एक कैंपेन शुरू की है जहां पर हम पार्क जो दोपहर के 12 से 4 बजे तक खुले रहने चाहिए, वो पार्क फिलहाल बंद है। तो हम एक सारे लोगों की ये अपील है, कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर से, यहाँ के एमएलए से, कि ये पार्क्स खुले रहने चाहिए। और ये चीज अब और शहरों में भी बहुत सारे साथी अब जुड़ चुके हैं, जहां पर ये एक डिमांड है कि
कम से कम जो हमारे पार्क्स जो अभी मौजूद हैं उन्हें तो आप कम से कम खुला रखिए। कूलिंग सेंटर्स जब तक बनेंगे तब तक बनेंगे, पर ये एक जगह है जो एक कूलिंग सेंटर की तरह काम कर सकती है। दिस कैन बी अ स्पेस वेयर वाटर, टॉयलेट, रेस्ट कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल हु आर इम्पैक्टेड, and this is something that needs to be made available. So that is one of the campaigns that we are running. Second thing that I want to highlight around this is, हम सरकार की बात करते हैं, हम सरकार, ऑफ कोर्स सरकार से बहुत सारी डिमांड्स हैं और मांगे होनी चाहिए। जो इस कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल हम जिन पे हम जोर नहीं डाल रहे वो हैं बिजनेसेस, और वो है प्राइवेट सेक्टर। ना सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेसेस, पर हम जैसे लोग जो इनफॉर्मल वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे हम अपने घरों पे जो हम डोमेस्टिक वर्कर्स जो हम डोमेस्टिक वर्कर्स को काम देते हैं, या फिर हमारे आसपास जो स्ट्रीट वेंडर्स और स्टाफ और जो बाकी लोग रहते हैं, उन सबका जो इम्पैक्ट है हीट का, उस पे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि लोग कम से कम गर्मी के जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उससे जूझ सके। और वो चीज हमें आज भी वो फाइट बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड इस चीज को लेकर ये है कि जो हमारे पास मजदूर या जो कामगार आते हैं, वो कौन सा अपने घरों पे एसी के साथ एसी चला के सो रहे हैं, या उनके पास कौन सा कूलिंग इक्विपमेंट है, तो उन्हें काम पर ये क्यों मिलना चाहिए। तो इस तरीके की धारणा लोगों में अभी तक है, जिसको हमें अटैक करने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में, जैसे मैं जापान का उदाहरण दूंगी आपको, फ्रांस का उदाहरण दूंगी, जहां पर प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड करने को पीनलाइजेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, कि अगर आपके आपके घर पे जो काम कर रहा है या आपकी सोसाइटी में जो काम कर रहा है, अगर आप उसे ये बेसिक व्यवस्थाएं आप उनके लिए नहीं मौजूद करवा रहे, so you are the one who is responsible as an employer. And as all of us who are employers of informal workers, we have to start thinking of ourselves as employers and mobilizing similarly to provide protections to people who are around us. This has to be something that we do parallelly while we are advocating for better policies and protections at the national level. तो ये चीजें आमने सामने चलनी चाहिए। जब जब हम पॉलिसी, हीट एक्शन प्लान की इम्प्रूवमेंट्स की, फाइनेंसिंग की, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी, हम हर चीज की बात कर सकते हैं, पर हम बिजनेसेस, इंडस्ट्री को नहीं रोक सकते। इन चीजों में हम किस तरीके से बदलाव लाएं, किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट्स लाएं, इस पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। और इसमें हमारा सिर्फ कूल रूफ्स या वाइट पेंट इन चीजों से काम नहीं होगा, हमें कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हाउसिंग, किस तरीके से हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से हम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज के बारे में सोचें और इम्प्रूवमेंट ला पाए। ये मुद्दे मैं उठाना चाहूंगी। अगर मेरे पास 2 मिनट और हैं अरविंद, तो मैं हीट स्ट्रोक डेथ पर भी मैं बात करना चाहूंगी। हीट हीट स्ट्रोक स्ट्रोक डेथ, डेथ पे एक सवाल था अपेक्षिता, और मैं आपसे आई विल आल्सो रिक्वेस्ट कि जो गाइडलाइन नहीं, एडवाइजरीज आए हैं खासकर इनफॉर्मल वर्कर्स के हवाले से, हमारे बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स यूनियंस, वर्कर कलेक्टिव्स के साथ के हैं, या बस्ती में काम करते हैं, उन मुद्दों पे काम करते हैं। तो उन गाइडलाइंस या एडवाइजरीज को हम कैसे यूज करें, क्योंकि आपका उस पर भी अनुभव रहा है, तो प्लीज अगर वो भी शेयर करेंगे छोटे में तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो पहले हीट स्ट्रोक डेथ के बारे में मैं बात करूंगी। हीट स्ट्रोक डेथ एक बहुत ही कंटेंशियस टॉपिक है, मतलब इस पर कोई डेटा नहीं देना चाहता, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। जैसे सौम्या दा बोल रहे थे कि कोविड के वक्त जिस तरीके से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको कार्डियक अरेस्ट या और किसी अन्य कारणों से उसको नोटिफाई किया जाता है, दैट्स द सेम थिंग दैट हैपेंस विद हीट स्ट्रोक डेथ्स। There are multiple agencies in India, from IMD to Ministry of Health and Family Welfare, National Crime Records Bureau। ये सारी जो एजेंसीज हैं, ये अपने खुद के हीट स्ट्रोक डेथ रिकॉर्ड कर रही हैं, और सबके नंबर्स अलग अलग होते हैं। और ये सारे नंबर्स आप देखेंगे इतने छोटे नंबर्स हैं, जैसे कि एक 2023 में IMD के हिसाब से 12 हीट स्ट्रोक डेथ्स हुई थी इंडिया में। जबकि मीडिया को, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, तो वो ऑलमोस्ट हर रोजाना कोई ना कोई सस्पेक्टेड केस ऐसा छाप रहे हैं अपने अखबारों में, अपने पोर्टल्स में, जहां पर कोई मजदूर किसी रेलवे स्टेशन के पास बेहोश मिला या उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके की खबरें मीडिया की तरफ से आ रही थी।
तो जब हमने ये देखना शुरू किया, हमने सोचा कि डेटा बिल्कुल हमारे पास मौजूद नहीं है कि देश में हीट स्ट्रोक डेथ कितनी हो रही हैं। तो हमने मीडिया आर्टिकल्स को इकट्ठा करना शुरू किया कि ये हम देखते हैं कि मीडिया कितने सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक डेथ्स के बारे में लिख रहे हैं। तो 2024 में पार्लियामेंट में सरकार ने बोला कि 360 मृत्यु हुई थी इंडिया में हीट स्ट्रोक डेथ्स की। और हमने मीडिया के एनालिसिस के हिसाब से हमने पाया कि 733 डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं सिर्फ 17 स्टेट्स में। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली फिगर थी, जहाँ पे हम पूरा देश के हीट स्ट्रोक डेथ को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट वी ऑलरेडी फाउंड मोर देन डबल द नंबर ऑफ हीट स्ट्रोक डेथ दैट than suspected heat stroke deaths than that were reported by the government. The other problem is that the government of India has put forth a platform called IHIP, जहां पर वो ये सारा डेटा अपलोड करने की बात रखते हैं। पर अब ये डेटा, ये IHIP प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पब्लिकली विजिबल नहीं है। हम और आप इसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये कितना सच है कितना झूठ है। और इसके बाद एक दूसरी चीज भी इस पर सामने आती है, वो ये है कि हीट स्ट्रोक डेथ्स का मुद्दा बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इस वजह से ही सरकार पे प्रेशर बनता है कुछ चीजें बदलने का या कुछ चीजें लाने का। और इसी वजह से हीट स्ट्रोक यूनिट्स बने हैं। दिल्ली में कुछ हीट स्ट्रोक यूनिट्स हैं। अब वेस्ट बंगाल Yeah, में भी खबर आ रही है कि हीट स्ट्रोक यूनिट्स बने हैं। मुआवजा लोगों के लिए कि जो लोग हीट स्ट्रोक डेथ से मारे जाएं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिले। अभी तक सिर्फ ओडिशा एक स्टेट है जिसने ये खबर सामने, जिसने ये छापा है कि वो कितने लोगों को ये 4 लाख रुपए, 4 लाख भी नहीं, कितना वो दे चुके हैं। बाकी बिल्कुल ओपेसिटी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस डेटा की। और हमारी मांग ये होनी चाहिए कि हम ये डिमांड रखें सरकार से कि कितने लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, ना सिर्फ मृत्यु पर उनकी इलनेसेस का ये डेटा पब्लिक होना चाहिए। जब तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी अच्छी पॉलिसी बनकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार पे वो प्रेशर ही नहीं है कि लोगों पे असल में असर हो क्या रहा है गर्मी का। हमारी अभी तक ये मान्यता और धारणा ये है कि गर्म देश हम हमेशा से गर्म देश रहा है, हम गर्म देश है, हमें आदत है गर्मी से जूझने की। और वो मान्यता अभी तक ब्यूरोक्रेट्स में बरकरार है। दूसरी पॉइंट गाइडलाइंस की। हम जिस तरीके से मोबिलाइजेशन देख रहे हैं देश में, सारे वर्कर ग्रुप्स आप मोबिलाइज कर रहे हैं आपस में गाइडलाइंस को लेकर। तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फॉर एग्जांपल, हमने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ, यूनियन के साथ हमने गाइडलाइंस रखी लेबर कमिश्नर को, जो हमने सबमिट की दिल्ली में, कि बाकी की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है गर्मी के बारे में, वो लोग और ज्यादा तीव्रता से सोच रहे हैं, हम इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो लेबर कमिश्नर ने वो गाइडलाइंस पढ़कर साइन करके सारे स्टेट्स को वो भेज दी। तो वो हमारे लिए एक स्टेप आगे थी कि चलिए, इन्होंने ये गाइडलाइंस, जहाँ पर गिगन प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने बहुत सारी अपनी मांगे रखी हैं, जिस तरीके से पानी की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, एल्गोरिदम प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर कोई वर्कर गर्मी की वजह से परेशान है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो 12 से 3 के वक्त अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो उसके रेटिंग्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें हमने लेबर कमिश्नर के सामने रखी और उन्होंने बाकी इंडिया में वो भेज दी। अब इसका एनफोर्समेंट, वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि किस तरीके से हम प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर डालें और किस तरीके से हम सरकार पे प्रेशर डालें ताकि वो प्लेटफॉर्म्स पे प्रेशर डाल सके इन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि गाइडलाइंस को हम किस तरीके से गाइडलाइंस की तरह ना रखें, पर वो एक्चुअली एनफोर्सेबल प्रोटेक्शन की तरह बन पाए। और इस पर अभी तक काम जारी है और इस पर हमें और बहुत सारी चर्चा करने की जरूरत है। बहुत कुछ है बोलने को, पर बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। और हम और चर्चा करें। थैंक यू अपेक्षिता। आपके लिए काफी सवाल आए, क्वेश्चंस आए, सो इफ यू कैन पिक दोस क्वेश्चंस इन द चैट इटसेल्फ, दैट वुड बी नाइस. Apekshita has mentioned a lot of things, but essentially covered the definition of how there is no legality and how labor, urban development departments, and many other departments are still left out. But she also very interestingly highlighted, of course, heat का stress तो है ही है, but the fact that कि पानी rest करने की जगह, shade, toilet, if it's not there, then how do you cope with so much of heat? And उन्होंने the other interesting point for us is कि how do you like engage with the businesses industry to get this enforcement. And आपका I think बहुत बढ़िया सुझाव हमारे लिए कि जो कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया ओपन द पार्क या पार्क को खुला रखने का कैंपेन,
या ये जो एडवाइजरीज जो जिनका मेंशन किया हमने इसको चैट में डाल दिया है, ये इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए है। इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, जो अलग अलग वर्कर ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज हैं उनके लिए। इसको आप कैसे अपने काम में यूज कर सकते हैं, आई थिंक उस आइडिया के साथ हम वी आर नाउ गोइंग टू रघु। सो वी आर एट अ पॉइंट वेयर वी नो we have a sense of the heat action policies where it's falling short. We have very good ideas from Apekshita of what needs to be done and so on and so forth. But there are many of us here. I'm saying ki I think there should be around 15 to 20 cities, let's say, right? How do we start engaging with the heat action plans at a policy? But what are the things that we can do as communities, as people, as unions, as worker collectives? So if you can push us on that, that would be nice. मैं बस रघु जी को ये कह रहा था कि हमने ये जान लिया कि अभी मसला क्या है, क्या चल रहा है, अलग अलग कैंपेन्स क्या हो रहे हैं, सवाल भी आप काफी यहाँ पे डाल दिए, पर अब हमारा ये है, हम चैट में भी आपसे चाहते हैं कि इसमें हम एंगेज कैसे करें। तो रघु जी अगर आप बताएं कि इसके साथ हम काम कैसे करें, कि अगर मैं लखनऊ में हूँ, मैं अगर बम्बई में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं इस चीज पे काम करना चाहता हूँ अपने संगठन, ग्रुप, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, तो हम इस पे काम कैसे करें, इस पे आप सुझाव दें प्लीज। थैंक यू। रघु आप अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं, आप तो अनम्यूट ही नहीं हो रहे सर। आप नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल। तो आपका दूसरा वाला जो था जिसमें वी वर नॉट एबल टू सी यू, अगर वहां से आप आएंगे तो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू हियर यू। हाँ, नाउ वी कैन। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। neither did I. किसी का साउंड हाँ, नहीं आ रहा रघु जी का। नहीं नहीं नहीं। रघु जी आप एंगेज विद हीट एक्शन प्लान्स, अगर इफ दैट कैन बी डन, दैट देखिए, वुड बी ग्रेट। मैंने कुछ तो कोशिश किया सवाल ढूंढ के उसको जवाब जी चैट में देने के लिए, लेकिन मैंने अपेक्षिता जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की, उसमें एक चीज मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप अभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री कैसे है। क्योंकि पिछले साल हम लोग काफी कोशिश किए थे, जो डिजास्टर रिलेटेड जो एक प्रोविजन था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, जो कोई डिजास्टर अफेक्टेड फैमिलीज होता है, लॉसेस होता है, तो उनको बैंक लोन वेवर के लिए स्टेट गवर्नमेंट बा इस नियम में ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही केरला का वायनाड का बारे में ये रिकमेंडेशन आया, केरला सरकार एग्री किया, केरला बैंक ने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जल्दी एक अमेंडमेंट बिल लेके इस प्रोविजन को ही खत्म कर दिया। मतलब अभी स्टेट गवर्नमेंट वो रिकमेंडेशन भी, तो जी आप इस स्थिति में जी एनडीएमए के साथ, मतलब होम मिनिस्ट्री के साथ बहुत उम्मीद आप नहीं रख सकते हो। लेकिन जी जो आप कर सकते हो, जो करना चाहिए, विच इज वेरी feasible, is we can do this advocacy with the state governments, because ठीक है। several state governments, there is a provision in the National Disaster Management Act that जी states can declare any kind of disaster, they can notify a disaster within their jurisdiction, within that state. तो उसमें जो 10% उनका जो टोटल जो एसडीआरएफ का फंडिंग जाते हैं फ्रॉम सेंटर, जी 10% of that can be spent on other disaster which the state itself will declare. तो ये ओके, हमें एटलीस्ट हमें ये सक्सेस मिला इवन इन अ बीजेपी श्योर, स्टेट. So ठीक है, this is परफेक्ट one सर। area we can do definitely and should थैंक be यू। done. ओके सौम्यता, थैंक्स फॉर द आइडिया। रघु जी आप आ गए Yeah. हैं? Can I be heard यस now? यस, वी कैन हियर यू। Oh, सो great. एक आइडिया सौम्यता की तरफ से आया, उसमें और आप आइडिया डालें। और दानिया का भी एक सवाल है, आई एम जस्ट रीडिंग आउट व्हाट शी इज सेइंग, कि ऑफ कोर्स स्टेट लेवल और म्युनिसिपैलिटीज के साथ एंगेज करने का क्या स्पेस हो सकता है, इफ देयर आर आइडियाज ऑन दैट आल्सो रघु जी। तो हम सवालों से क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उस पे आप अगर थोड़ा हमको Okay. प्लीज गाइड करेंगे, दैट वुड बी नाइस। I have a few slides. You think I can share it? व्हाई नॉट? I will Um, make you a co-host. Just a second. Yes, I made you a co-host. मेरा साथियों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज बने रहें और यहाँ पर हम मौजूद रहें, क्योंकि
इसके बाद हम शायद प्लीज ये डिस्कस करें कि जैसे कि कैंपेन चल रहा है ओपन पार्क्स का, तो उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं, वो डिस्कशंस बाकी हैं। तो प्लीज आप डटे रहें यहाँ पर, इज आवर रिक्वेस्ट। Okay. वी कैन सी द स्लाइड्स। Yes. Yeah, is that okay? यस रघु जी। Okay, so I will zip through the slides. I don't want to use all of them because हमारे पास समय भी कम है। तो जो अरविंद कह रहे थे, जिस गाइडलाइन से है, हमने थियरी के बारे में सुन लिया, एक परिप्रेक्ष्य हमने अपेक्षिता ने भी दिया कि देश में हीट एक्शन प्लान्स किस प्रकार से हैं, वो किस दिशा में है, इस पे हम क्या कर सकते हैं। मैं इस पे फोकस करूंगा कि हम लोगों ने अभी हाल में कई सारे और संगठनों के साथ मिलके, दिल्ली में खास करके पर अन्य जगहों में भी, एक कैंपेन चलाया है गर्माहट को लेके। तो इसमें हमने किस प्रकार का काम किया है, किन चीजों पे फोकस किया है, हमने क्या सीखा है, उसको मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। सो I'd like to share some experience of campaigns that we have launched in Delhi as well as in some other places in the country, in terms of what we are trying to do and what we have been able to do. परफेक्ट। रघु जी, आई Yes. थिंक आपका जो स्लाइड है वो हमें फुल स्लाइड में नहीं दिख रहा, तो एक बार प्लीज आप चेक करेंगे कि द विंडो दैट यू हैव सिलेक्टेड इज शेयरिंग का, जो आपने विंडो सेलेक्ट किया है। नहीं, अभी जो मुझे तो स्क्रीन पे दिख रहा है वो शेयर नहीं हो रहा क्या? नहीं, वो आपका पहला स्लाइड दिख रहा है, आप हाँ, आगे तो बढ़ाएं मैंने प्लीज। I have now changed to the second one. नहीं, No, इट्स नॉट that गोइंग is टू द not सेकंड। that is not coming, Raghuji. तो रघु जी, बिकॉज आपने एक काम करिए ना, इसको शेयर स्क्रीन करें, दैट विल बी बेटर। इसको स्टॉप शेयरिंग, यू कैन डू अ स्टॉप शेयरिंग प्लीज, एंड देन डू अ एंटायर स्क्रीन को आप सेलेक्ट करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग, उसमें एंटायर स्क्रीन बिल्कुल राइट में होगा, उसको क्लिक करें, दैट विल बेटर। I go back to स्क्रीन शेयर, कैन यू सी? okay, I go back to share जी, and उसमें क्लिक करेंगे तो राइट में ऊपर की तरफ देखिए, एंटायर स्क्रीन आपका दिखेगा। it only has it says there's a button there saying share. हाँ नहीं, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में प्रेजेंटर लेआउट एक फुल स्क्रीन का सिंबल है। हाँ, तो एंटायर स्क्रीन, मुझे तो एंटायर स्क्रीन दिख रहा है कि जहां पर अच्छा, आप, एंटायर स्क्रीन करके नहीं है इसमें मेरे में। अच्छा ट्राई करके देखिए एक बार, अगर हो रहा है तो, अदरवाइज हम छोटे उसको ही शेयर करेंगे। हाँ, अब रघुजी आप शायद स्लाइड, नहीं नाउ, अब आप स्लाइड शो पे जाइए, आप जो कर रहे थे। अब आपका हम पूरा देख पा रहे हैं स्क्रीन, बहुत बढ़िया। ठीक है। जस्ट गो टू योर स्लाइड स्क्रीन। So where am I in the slides? यस, एंड आप अब स्लाइड शो कर दीजिए, थैंक यू। अब दिख रहा है? शानदार, परफेक्ट सर, प्लीज। अब सेकंड वाला भी दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो बाकी जो चीजें अभी सौम्या ने बताया था, मैं उस पे अभी नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी बात मैं इस पे दर्शाना चाहता हूँ, ध्यान हमारा, ये जो बात अभी हो रही थी डेथ्स के बारे में फ्रॉम हीट, और हमारे पास की आंकड़े नहीं है भारत में। ये सही है, ये पिछले साल भी स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि गर्माहट से कितने लोगों की मौत होती है। और जैसे पहले अपेक्षिता ने बताया, दिस इज कोविड के जमाने में भी यही था, क्योंकि डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करता है उसमें वो लिखता नहीं है कोविड से मरा या हीट से मरा, वो लिखता है कि कार्डियक फेलियर हो गया, क्योंकि वो अल्टीमेटली वही होना है, दिल रुकेगा आपका, हार्ट अटैक होगा या लंग कोलैप्स करेगा, उसको फिर वो कॉज ऑफ डेथ करके लिखता है। इस पे हम
हेल्थ लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इस पे भी ध्यान से हमें आगे से कैंपेन करना चाहिए कि ये एक एडवाइजरी जाए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से टू रिकॉर्ड द डेथ एज बीइंग कॉज्ड बाय हीट। क्योंकि जो हमने अभी बात की कि हीट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ डिजास्टर, बट इफ कॉम्पनसेशन हैज टू बी गिवन, मुआवजा अगर दिया जाना चाहिए, तो अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि गर्माहट के वजह से मृत्यु हुई है तो क्या कॉम्पनसेशन देगा, इवन इफ यू डिक्लेयर हेल्थ एज अ डिजास्टर। सो दिस शुड बी टेकन एज ए वन ऑफ द प्रायोरिटीज फॉर आवर वर्क। और हमें खास करके गर्माहट के कैंपेन को वी शुड मेक इट हेल्थ फोकस्ड, बिकॉज अल्टीमेटली जो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पे असर पड़ता है, the effect that it has is on our health. So if we focus on that also, apart from lobbying with the labor department, with disaster management, with IMD, we should also make it a point to campaign in a very major way with the health ministry as well as with health groups towards this campaign. And I think Nagaraj Adve had just pointed out in the chat that so many deaths were announced in Europe. If Europe records 42,000 deaths or 60,000 deaths and India records only 370, it clearly shows that there is something wrong. So this should be also focused on in our work. Briefly on the heat index, जो सौम्या बार बार उस पे एम्फेसिस दे रहे थे, मैं भी उस पे दोहराना चाहता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अब हीट वेव, ये गर्माहट, अति गर्माहट के चलते क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम हीट is resulting in longer durations and more frequent heat waves, that is extreme heat conditions, and that if you reach something like in the range of 38 Celsius and with high humidity, WHO has said this is close to the limits of human survivability, यानी कि जान का खतरा है। And this we are seeing 2024 में, जब दिल्ली में 3 हफ्ते लगातार गर्माहट की लहर चली थी और तापमान कुछ इलाकों में 48 अंक सेल्सियस तक पहुंचा था। चेन्नई में उस महीने 38 के आसपास, 37-38 के आसपास तापमान था। पर अगर आप पूरे महीने देखेंगे टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, उसका क्या इफेक्ट है, एक्चुअली चेन्नई वाज फेल्ट लाइक हॉटर देन इन दिल्ली। ये एक चार्ट है जो आपके सामने है। दिस इज अ चार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द हीट इंडेक्स, एंड मेनी कंट्रीज यूज दिस हीट इंडेक्स which combines temperature with humidity. और अगर आप NDMA के गाइडलाइंस भी देखेंगे, many state के heat action plans में देखेंगे, the same chart is used to show the effect of humidity. But IMD says this chart was, drawn up in the temperate countries in the US and Europe. This is not applicable to India. तो मैंने उनको एक सेमिनार में हम थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात कही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं साहब, आप IMD हैं, आपको अमेरिकन चार्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अपना चार्ट बनाइए, उसके आधार पे हम जाएंगे। सो वी नीड ए कंबाइंड इंडेक्स, कॉल इट व्हाट यू लाइक, ऑफ टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ विच heat wave is declared, heat action plan is kicked in, advisories are notified, and disasters are notified, combining temperature and humidity. This is, but it's a good ready reckoner which we can also use. ये हर जगह आपको अवेलेबल है, आप गूगल में भी जाएंगे, हीट इंडेक्स करके गूगल करेंगे तो ये चार्ट आपको नजर आएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कि असर क्या है। अर्बन हीट आइलैंड की बात अभी अपेक्षिता जी ने की, मैं 2 बातों पे जोर देना चाहता हूं। इस पे पिक्चर जो है वो दिखाते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्यों होता है, क्योंकि हमारी पूरी शहर जितने हैं कंक्रीट सीमेंट से भरा हुआ है,
बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, और हर दूसरे दिन विकास को दिखाने के लिए कि अब हम 20 फ्लाईओवर और बनाएंगे शहर में, तो तापमान और बढ़ेगा। आप देखिए, अगर अर्बन हीट आइलैंड के वजह से तकरीबन 4 से 5 अंक सेल्सियस शहर का तापमान इर्द गिर्द के जो ग्रामीण इलाके हैं, it's hotter than the surrounding rural hinterland by about 4 to 5 degrees Celsius. On top of that, because of climate change, we are already seeing 1.5 degrees Celsius above. तो हो गया 5.5. Plus, heat wave is normally 3 to 5 degrees more than normal. So we are talking about almost 8 degrees more than normal in urban areas when you combine climate change and urban heat island. Two aspects on urban heat island are, I think, very important to recognize, और हमारे campaigns में, demands में ये आनी चाहिए। जो हीट आइलैंड है वो कंक्रीट से जो गर्माहट दिन में ऑब्जॉर्ब करके वापस रेडिएट करती है, उसके अलावा अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू अर्बन हीट आइलैंड इज व्हाट इज कॉल्ड वेस्ट हीट। गाड़ियां इतनी चल रही हैं सड़क पे, आप उस गाड़ी के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो बॉनेट इतना गर्म होता है, क्योंकि वो इंजन काम कर रहा होता है नीचे, तो वो गर्माहट पैदा करता है। वो सब गर्माहट शहर के गर्माहट को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जितनी ठंडक कमरे के अंदर करती है, उतनी ही गर्माहट वो शहर के अंदर, शहर में फेंकता है। It is estimated that roughly, if you take urban heat island being 4 to 5 degrees Celsius more, out of this 4 to 5, about 2 to 3 degrees is contributed just by air conditioners. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जो भी है, जो पीक डिमांड है पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, समर महीने में दिल्ली में 8,000 मेगावाट के आसपास पीक डिमांड है। उसमें से 4,000 मेगावाट एयर कंडीशनिंग में जाता है, यानी 50%। तो 50% एनर्जी जो आप खींच रहे हैं उसको आप ठंडक के लिए यूज कर रहे हैं, पर वही ठंडक शहर को, गर्माहट को बढ़ाता है 2 से 3 अंक सेल्सियस में। तो रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ एयर कंडीशनर्स। सॉरी, बस 5 मिनट है रघु जी। सो यस यस, आई विल बी थ्रू 5 मिनट्स। और हम कैसे एक्ट करें वो वाले पे भी प्लीज Yes. आप हमको सजेस्ट करें। सो हमने इन सब को देख के दिल्ली में पिछले साल ये कैंपेन शुरू किया था, जिसपे हमने पहला कदम हमारा था कि हमने दिल्ली का जो हीट एक्शन प्लान है उसको स्टडी किया कि सरकार कहाँ खड़ी है, वो क्या कहती है कि हम करने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज द गैप्स that are there, particularly with regard to vulnerable groups. Have they identified the vulnerable groups? If so, are there measures intended for those vulnerable groups? So we initiated this study. We placed some points before this larger group of about 22 stakeholders, which included associations of gig workers, street vendors, construction workers, home-based workers or domestic maids, CSOs, NGOs, etc. We placed that thing. Then we, based on that, drew up a charter of demands, which one of our constituents sent to the NDMA. So we started getting invited to the NDMA meetings, which Arvind has spoken about, and so many of us have been involved in, which has resulted in changes to the guidelines, which may be only on paper, but gives us a handle with which to initiate work on the ground with government agencies, municipalities, state governments, etc. We also initiated some action, क्योंकि सरकार कुछ चीजें करेंगी, कुछ चीजें नहीं करेंगी, पर जनता को कुछ करना है. So we started first, that was last year, with some awareness posters, distributed them, pasted them in different localities, and a leaflet which formed a part of a campaign advocating use of ACs at minimum 25 Celsius, कि 25 सेल्सियस से कम तापमान पे आप एयर कंडीशनर को ना चलाएं. ये एक कैंपेन हमने शुरू किया था आगे,
तो ये हमारे बेसिक जो इतने हमने किए हैं काम, स्टेट हीट एक्शन प्लान्स को स्टडी किए हैं, स्टेक होल्डर्स मीटिंग किए हैं, we drew up the list of vulnerable groups and an assessment of their vulnerability and needs for heat action plan to be incorporated in that, and then advocacy with government, with district, with disaster management agencies, etc. This resulted in changes in the heat action plan in several states. I'm not saying कि ये केवल हमारे वजह से है, बहुत सारे लोगों ने एडवोकेसी की है, पर cumulative effect is heat action plans are changing and becoming more responsive to the needs of vulnerable groups. This is a map showing various states in which our campaign is currently active. We are making these kinds of posters to differentiate between heat exhaustion, which happens गर्माई अगर ज्यादा लग गई तो आप थोड़ा से शेड छाए में बैठ जाओ, ठंडा पानी पियो, you regain control over yourself. But there is a difference between that and a heat stroke, which becomes very serious. So we are talking with communities, with health workers, with hospitals to make this difference clear, because most hospitals where these heat response clinics are set up have said by the time patient is brought to the hospital, he is close to death. उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. So it's very important that local communities, local clinics are sensitized in this, and community workers, community people are also sensitized कि कहाँ तक हम इसको घर में उसको ट्रीट कर सकते हैं और किस स्टेज पे हमें उनको अस्पताल में ले जाना है. So this is also the posters which we are making. ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, ये हम कई जगह पे पेस्ट कर रहे हैं और ग्रुप्स इसको बांट रहे हैं, etc. Then we are also working to install drinking water points. Now I recognize, मैं बिल्कुल इसको समझता हूं कि जिम्मेदारी सरकार की है ये सब करने को, पर ये देखिए दिल्ली की सरकार ने पिछले साल वायदा किया था कि वो 3,500 वाटर एटीएम जिसे कहते हैं वो लगाएंगे. अगर मेरे आंकड़े सही हैं, मेरे ख्याल पिछले साल तक 10 हुए थे और इस साल शायद 20 तक पहुंचे हैं. तो एक तो उस वहां तक हम इंतजार नहीं कर सकते. दूसरा, हम कुछ उदाहरण के तौर से जनता के सामने भी और सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं कि देखिए ये जरूरत है, ये जनता कर रही है, आप भी इस काम को आगे बढ़ाओ. सो वी आर वर्किंग विद बिल्डर्स. ये तस्वीर जो दिखा रही है, नई इमारत जो बन रही है, उस बिल्डर को कहते हैं आप अपने मजदूर के लिए शायद पीने के पानी का प्रबंध करते हो, इसको आप सड़क पे रखिए ताकि आम जनता को भी इसका फायदा हो. प्लस वी आर कीपिंग दीज वाटर पॉट्स etc. This one showing one, but there are others we have installed showing multiple. This picture on your right is very interesting. This is a setup in the area where I live, which has been set up by the Market Association along with the local temple, which is a electric run cooler with a RO facility, which makes cold water. It works between April and June, July, to which anybody, any passerby can come, fill up cold water in a bottle and take with them. We are trying to get this model replicated, if not with an RO and thing, at least with a cooler and city water supply to be able to replicate this in different locations. We have worked with rickshaw pullers to give headgear of one kind or another. In this case, last year during the campaign, the demand came, don't give us topis, which is what we started with. They said, give us gamshas, which we can use to around our head. We can make it wet and use it on ourselves. It's multiple uses. One of our partners here has started this campaign asking people to donate money for a umbrella and a little flask of water and to contribute funds towards that. The picture you see at the bottom is a picture from Telangana, which with corporate social responsibility, अपेक्षिता बात कर रही थी private sector को involve करने के लिए, they sponsored umbrellas. And this is a popular demand by people, क्योंकि वो कहते हैं इससे जो है हमें गर्माहट से भी
बचाव मिलता है, और गर्माहट के बाद जब बारिश का सीजन आएगा तो उसमें भी हमें ये मददगार होगा. These are things which the photo on your right, I don't know if it's very clear or not. ये बस स्टैंड के ऊपर ये जो शेड नेट होते हैं जो पौधों के ऊपर लगाया जाता है, वो लगाया है बस स्टैंड के ऊपर. ये पब्लिक ने through CSO they have put this there, and on the this can be put in front of on top of street markets जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का कंसंट्रेशन होता है इत्यादि. भीड़ भाड़ का जो इलाका है, वी आर ट्राइंग one facility where there are these dark things where the gig workers stand and collect these 10-minute delivery. We have noticed that even there, they don't have any cooling points or shelters where this kind of shade net or something can be done. The picture on your right shows what is a growing popularity in Pondicherry and Chennai are these green shades in top of रोड क्रॉसिंग्स. जहां पे चौराहे हैं वहां पे जो 2 मिनट जो स्कूटर गाड़ियां रुकती हैं उनके ऊपर छाए मिले, वो 2 मिनट में भी बहुत फर्क पड़ता है. ये एसी के बारे में लिखा है कि कितना ये हो सकता है. बाय द वे मैं ये बताना चाहता हूँ एसी पे पाबंदी ये जी हम इसको थोड़ा बस 2 मिनट ये एसी पे कंट्रोल करना, काबू करना कि इसको 25 अंक सेल्सियस से कम में मत चलाओ. ये कई एशिया के शहरों में, बैंकॉक में, सोल में, शंघाई में, टोक्यो में ये अनिवार्य है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मेजर कॉरपोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स यहाँ पे है. अभी तक इसकी प्रॉपरली एडवाइजरी तक भी नहीं गई, जो हमें लगता है कि होना चाहिए. जब तक नहीं हो, हमारा सुझाव ये है कि इसको हम कैंपेन के तौर पे भी जनता के सामने ले जाएं. हमने एक छोटा सा पर्चा बनाया है इसके लिए, जो हमने पिछले साल और इस साल भी हम करेंगे. अखबारों के साथ जो सुबह डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें डाल के जनता को इसको हम पॉपुलराइज करेंगे. ग्रीनिंग के बारे में कहा भी है. ये एक स्लाइड दिखाता है कि हम किस प्रकार से इसकी मांग रखें सरकारों के सामने. एंड आउटरीच कि जितने हम ये काम कर रहे हैं, आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं, इसको हम और बढ़ाएं. बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल डूइंग दिस, बट देर आर सो मेनी पीपल नॉट डूइंग दिस, एंड मेनी पीपल डूइंग दिस टू converge the perspective and the points and the demand should be done, including with trade unions and political parties. And this particular picture which I'm showing you is a initiative taken by the Congress party's CSO they call it. हालांकि ये एक पार्टी का आउटलेट है, पर इन्होंने हमारे साथ ही बैठ के एक डिमांड चार्टर बनाया which they have been then sending to various government departments etc. And it is useful to do this because this has to become a much broader level mobilization than a small NGO or CSO level effort, and we need to work towards that. I hope I've been able to give a flavor of some kind of work that we have been doing, and we intend to take this further. Like, for example, what I've said here, more drinking water points, working on more cooling shelters, public advocacy and awareness. We also want to work on community level action. Community level पे वहाँ पे community worker को train करें, sensitize करें, ANMs के साथ काम करें कि वहाँ पे कैसे हम we be careful, start watching for the first signs of heat stress or heat exhaustion and get ready for referral to a hospital if necessary. Various campaigns. अपेक्षिता ने बात की पार्क्स के बारे में, हम लोग पार्क्स भी कर रहे हैं, एयर कंडीशनर के बारे में कर रहे हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस अवेयरनेस मटेरियल्स ऑन डिफरेंट थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रघु जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद. अब आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं. स्क्रीन शेयर मेरा ठीक है. आई थिंक हमारे पास बहुत सारे साथी हैं जो सवाल भी करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं. छोटे छोटे में बात रखिएगा क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा है लगभग. We only have half an hour, so we will request everyone to give ideas in very small. Of course, it will not be enough to come to a conclusion, but I think we will gather all the ideas here and then we will take it forward. तो अपने जो भी सुझाव दें बिल्कुल छोटे छोटे में दें और आगे बढ़ाएं.
बस मैं ये सोच रहा था कि NAPM श्रम करके हम अलग अलग शहरों में हैं, यहाँ पर वही मैं कह रहा था कि 20-25 शहरों से साथी हो सकते हैं। तो हम ये कैसे सोचें कि स्टेट अपने राज्य अपने शहर में हम नीति और पॉलिसी के साथ कैसे एंगेज करें। कुछ आइडियाज हमको यहाँ पे मिले आपसे, हमारे स्पीकर से। हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ कैंपेन्स, कैंपेन का हिस्सा हम कैसे रहें, चाहे वो पार्क का कैंपेन हो, चाहे वो वाटर पॉइंट का कैंपेन हो, इसके साथ हम कैसे एंगेज करें। और आखिर में सब कुछ सरकार के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते, हालांकि सरकार जिम्मेदार है। कम्युनिटी समुदाय इसमें क्या कर सकती है, व्हाट कैन बी डन एट द कम्युनिटी लेवल। थोड़े बहुत अच्छे आइडियाज आए कि हम प्रसाद जी का एक अच्छा आइडिया है कि क्या हम ऑन स्पॉट विजिट करें, चाहे वो वर्कर साइट का हो चाहे वो पार्क का हो। तो ऐसे आइडियाज हम जरा बटोरते हैं। और हीट टेक्निकली अभी हम मिड मिड तो नहीं पहुंचे, पर काफी गर्मी में हम अंदर घुस गए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम जरूर है कि हम कुछ इसमें एंगेज करें और कुछ बदलाव की तरफ हम इस पूरी कोशिश को आगे बढ़ाएं। तो प्लीज सब लोग छोटे छोटे में सजेशंस दें, फिर हम एक बार स्पीकर्स के पास वापस जल्दी से पहुंचेंगे। अकबर भाई आपका हाथ खड़ा है, एंड देन संदीप। अकबर भाई। थैंक यू मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बस मैं कुछ पॉइंट बस जोड़ना चाह रहा था। जैसे कि हमने देखा कि जब भी हीट प्लानिंग होता है तो हीट प्लानिंग में कभी भी हमारे जो बात करने वाले साथी है वो नहीं होते हैं, जिस वजह से एक अच्छा प्लानिंग बनकर नहीं आता है। तो हमें एक हीट कमेटी का भी डिमांड रखना चाहिए कि एक हीट कमेटी बने। और जैसे सौम्या जी है और जो हमारे रघु सर है और जो हमारे साथी हैं, हमारे इन साथियों का उसमें पार्टिसिपेंट होना जरूरी है। और दूसरा है कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहर को ब्यूटिफिकेशन के नाम पे अलग अलग मटेरियल से घरों को बनाया जा रहा है, और घरों को ठंडा रखने के लिए मटेरियल तो लोग ला रहे हैं, लेकिन घर के बाहर हीट कैसे कम होगा उन मटेरियलों पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि लोग जब भी घर बनाए कुछ अपने घर को ठंडा रखने के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं, घर के बाहर का माहौल भी किस तरीके से ठंडा हो, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए। और सरकार हमेशा कहती है कि शहर के अंदर वाटर एटीएम लगाने वाले हैं, लेकिन वो वाटर एटीएम कब लगाने वाले हैं, कहाँ लगाने वाले हैं, आज तक पता नहीं चलता है। लेकिन सरकार जो कहती है कि वाटर एटीएम होना चाहिए, हमें लगता है कि हमें सरकार को एक लेटर लिखना चाहिए कि वाटर एटीएम की इस टाइम जरूरत है, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा इस टाइम होता है। और और मेरा एक एक सजेशन ये है कि दिल्ली में जितने हॉस्पिटल है, खासकर क्योंकि मैं दिल्ली से हूं तो इसीलिए मैं दिल्ली को लेके बात कर रहा हूँ। दिल्ली में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है जहाँ पे हीट को लेके करते हैं काम। मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में जितने जिले हैं दिल्ली के, उन जिलों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों में हीट को लेके एक अलग विंडो होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी में होता है, लेकिन वहां हीट को लेके कुछ करते नहीं है ये लोग। तो मेरे ख्याल ठीक से है वो अकबर जो भाई। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बहुत जी जो हमारे डेथ की मात्रा है वो नहीं आ पाता है। होता क्या है कि हम हॉस्पिटल में पहुंचते तो वो हमें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, हीट को लेकर ट्रीट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं था हीट को लेकर कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें जी। ये भी डिमांड रखना चाहिए। और एक ठीक सजेशन है। ये भी है कि बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर अभी सरकार ने मोहल्ला रसोई किचन खोला है जो कि लेबर लोगों के लिए है। लेकिन उन किचनों जी के अंदर लोग गर्मी के अंदर जब जाके बैठते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि थोड़ा उसमें ठंडक रहे कि लोग जाके बैठे। और दूसरा मेरे इसमें बात ये जोड़ना है कि उसके अंदर लोगों के लिए पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। अभी मैं पिछली बार अपने यहाँ पे कुछ वर्करों से ठीक है। बात किया था जो कि अभी एक्सेस कर रहे हैं उन किचनों बोल। का। उनका ये कहना है कि खाने से महंगा पानी है। 5 रुपए का अच्छा। खाना है, लेकिन उसके बाहर एक दुकान खुला हुआ है जो 20 रुपए का पानी बेच रहा है। तो ठीक है। मजदूर को अभी ठीक है पीने अकबर के लिए भाई। पानी की भी जरूरत है। तो मेरे जी ख्याल से हमें ये पॉइंट भी जोड़ के बोलना चाहिए। बस मैं इसमें ठीक है। अपना बात खत्म करता थैंक यू अकबर भाई, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए, उस पर मैं अभी नहीं आ रहा, हम सबके आइडियाज लेते हैं। एंड मेरा रिक्वेस्ट संदीप, if you can limit your ideas to let's say 2 and share them quickly and then we go ahead. Sandeep. Yeah, thank you brother for giving me opportunity. मेरा तो एक आइडिया देना चाहता हूँ मैं। अभी ये जो हीट वेव्स अभी चल रहा है ना, तो प्रीवियसली व्हेन आई वाज इन अ चाइल्ड,
जब मैं छोटा था तब रोड के दोनों साइड पे भी झाड़ा थे, तो ये झाड़ा टोटली रोड को कवर करता था। ये कैसा दिखता था बोले तो जैसा रोड के ऊपर गए तो एक टनल के अंदर से गए तो कैसा रहता वैसा दिखता था। अगर गवर्नमेंट वैसे ही रोड के दो साइड भी झाड़ लगा के वो झाड़ को एक टनल के तरह अगर इस्तेमाल करे तो देन इट विल बी ए वेरी बेस्ट वे टू कंट्रोल द हीट दोज हु आर वर्किंग ऑन द रोड। तो ये गरीब लोगों के वास्ते बहुत अच्छा एक प्लेस हो जाता। क्यों बोले तो अभी मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन सिटीज पूरा अभी कंक्रीट जंगल बन गया, तो ऐसा कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट अगर गवर्नमेंट करे तो अच्छा रहता। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। या थैंक यू। Thank you, Sandeep bhai, from our side to be here and to give your idea. Abhi, please don't go, because if there are ideas with respect to your city, you can contribute there. So we'll come to that. We have Ashok ji. Ashok bhai, आप बोलना चाहते हैं please? And then Shubham. छोटे में मेरा दो ही सवाल थे, सुझाव भी थे और सवाल भी थे कि हम जिस तरह से अर्बन एरिया की मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी का या कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बारे में, जो छोटे टाउन है, टाउन लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं समंदर के किनारे पे जो टाउन है, और वहाँ जिस तरह से हीट बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन करना चाहिए। यही मेरा सुझाव था। दूसरा, गांव में भी हीट की वजह से जितने भी स्ट्रोक के जो केसेस आ रहे हैं वो गांव में भी ज्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमें सीरियसली थोड़ा सोचना चाहिए। तीसरी बात जो है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स के लिए जैसे बटर मिल्क और ये सब बांटने का चैरिटी के हिसाब से हो रहा है, मगर वो चैरिटी नहीं, राइट है उनका। इस तरह से हमें पॉलिसी में लाने का सोचना चाहिए। थैंक यू अशोक जी। शुभम एंड सुहास। शुभम। Yes, basically, I'm totally agree. Whatever the insightful uh, opinion and the things are shared by the Apekshita ma'am, Raghu sir, and the suggestions. Yes, so Shubham, basically, हम suggestions पे जाते हैं। yes, basically, suggestion is from my side. Here are too many people are saying that you have to engage in policy space, governance space. So this lived experience, these all things will be enforceable in future. So common citizen will ask the question to government. And as mentioned the Raghu sir, it is not possible at the central level for the time being, but we are trying at Maharashtra level with the Maharashtra government. So I just want to appeal all the people who are here and who are working on specifically heat and with communities also. So I would like to connect with you all people in future for this urban heat stress, particularly for vulnerable groups. So how we can make this urban heat stress in the policy space, particularly in legal frameworks. Yeah, that is my opinion. शुभम। एंड आप कहाँ से हैं? NAPM के साथ जुड़े हुए हैं साथी? Basically, one of my friends shared this session who knows I am working on the heat stress, so that's why I join here. ओके, परफेक्ट। आप लॉयर हैं? मतलब मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। Yes, basically we are the lawyer policy think tank. ओके, ठीक है, थैंक यू शुभम। Thank you. सुहास। Just a second, शुभम जी। संतोष भाई, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी प्लीज सुझाव दीजिए संतोष भाई, एंड उसके बाद हम क्या एक बार सबके कमेंट्स ले लेंगे। जी संतोष भाई। Shubham, I'm Santosh Alwani from Pune, and there are few other members here from Maharashtra, Pune. So we can connect on these things afterwards. Like, you can just share your Shubham, number. can you share your details maybe and email and phone number? If you do that, then we'll. Yeah, I have put already one message. Perfect. I will share again. Okay. Thank you. Fine. That's it. Okay. Perfect. We'll take it forward. ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, हम दूसरे शहरों में भी पूछ रहे हैं आपसे कि इसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे करें, क्योंकि हमारे पास अपेक्षिता है, सौम्य दत्ता है, रघु है, तो हम इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें हमारे पास जो समझ और साथी हैं यहाँ पर। Kondola Rao sir, Garu, you want to share your perspective very quickly? Suhas ji, very quickly, and then we will have. Thank you. I am from Environmental Justice Forum from Hyderabad.
Sure, sir. Standard operating procedures may be circulated to the PHCs to identify the heat stroke victims and to take up the any palliative measures in the PHCs. Sure. And yeah, okay, thank you. Sure, sir. Thank you. But I just want to also point out that Hyderabad does not even have like a heat action plan for itself. So, I mean, those could be things that we should work. I am also in Hyderabad, but we will see. Suhas, Tai? Hello. Yeah. Tai. Shall I speak in Hindi, maybe? हाँ बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश mixed, okay. या मराठी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, हम सब समझेंगे। सौम्यदा ने जो एक उनके लेख आर्टिकल का जिक्र किया है चैट में, उसका हमने मराठी ट्रांसलेशन करके सिटी हीट के बारे में, वो आंदोलन मैगजीन में अभी छपेगा, ये जून के, जो मराठी बोलने वाले उनके लिए, और आप में से कोई उसका हिंदी भी करे तो अच्छा रहेगा। हमने जो NAPM कन्वेंशन हुआ था, NAPM at 30, उसके क्लाइमेट वाले इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उसकी मैं थोड़ी याद दिलाऊं ताकि सभी जो यहाँ जुड़े लोग हैं उनके संगठन भी उसको आगे बढ़ा सकते, कि जहाँ एक तो हीट का डिजास्टर करके नोटिफिकेशन करना, और एनी हीट विक्टिम should be considered for getting all his rights respected, including free medical treatment, or all big work sites like construction sites और ये मेट्रो का काम, ये सब जो चलते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स रहते हैं, तो the contractor or employer should be compelled to provide facilities for cooling, like taking bath, क्योंकि इतने डस्ट में काम करते तो उनका स्वेट भी निकलेगा नहीं, तो कूलिंग सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, और access to medical emergency treatments, and a special budget should be demanded for compensating for loss of the livelihood, रोजगार जाएगा हीट में काम नहीं करने का इसलिए, and all the related expenses, उसके लिए स्पेशल बजट का डिमांड करना चाहिए। थैंक यू। श्योर, ठीक है। अब मैं बस आप लोगों से पूछ रहा था, एक रिक्वेस्ट है, हम क्लोज करने वाले हैं 2 मिनट में, नहीं 10 मिनट में। एक सजेशन आप लोगों से जानना था कि कौन से शहर से साथी हैं जो सिंपल कैंपेन्स या छोटे एफर्ट्स में जुड़ना चाहते हैं। और देखिए, इसमें काम शुरू भी करने की जरूरत है। हो सकता है हमने अलग अलग तरीके से काम किया हुआ, थोड़ा अगर कोऑर्डिनेटेड तरीके से करें, या जो अपेक्षिता कैंपेन कर रहे हैं उनके साथ जुड़े, या रघु जी जो कैंपेन कर रहे हैं उसके साथ जुड़े, इसमें हमारी भी समझदारी बढ़ेगी और हम पॉलिसी में इम्पैक्ट भी करा पाएंगे और लोकल लेवल पे करा पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, अपना इन्होंने फोन और ईमेल और सिटी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो प्लीज चैट में करें, और इसमें हम इसके बाद हम एक मीटिंग लगाएंगे। अकबर भाई का एक सजेशन था, आई एम थ्रोइंग इट हियर, अपेक्षिता, सौम्यदा और रघु जी, क्विक रिस्पॉन्सेस आपके तरफ से। वर्कर की तरफ से आर्टिकुलेशन होना चाहिए, हम जल्दबाजी में नहीं, मानो अगर हमने 2-3 घंटे का टाइम निकाल के हम इत्मीनान से बैठे, हमारे वर्कर साथी, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर, वेस्ट पिकर, गिग वर्कर ने ऑलरेडी कर लिया, अलग अलग डोमेस्टिक वर्कर साथी, सब लोग बैठे और ये बस सोचें कि अच्छा हीट वेव है, हमारे पास NDMA का एडवाइजरी है, इसको हम अपने जरूरतों के रूप में कैसे 1-2 पेज में अपनी मांग को हम कैसे बना सकते हैं। ये चीज अगर हम कर दें, शायद मुझे लगता है कि जो अकबर भाई का सुझाव था बहुत अच्छा एफर्ट होगा, और अलग अलग वर्कर ग्रुप का ऐसे डिमांड और डिटेल निकलते आएगा, उसको वो अपने कम्युनिटी में भी लेके जाए, उसको पॉलिसी में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक मैं ये आपसे जानना चाह रहा था। दूसरा कि क्या हम पार्क, जैसे यहाँ पर प्रसाद भाई का बड़ा अच्छा सजेशन आया, प्रसाद चाको भाई जो हमारे अहमदाबाद के साथी हैं, साइट इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या हम अपने शहर में बस ये चेक करें कि 10 पार्क में
पार्क दोपहर के टाइम पे खुले हैं कि नहीं खुले हैं, वहां पर क्या क्या सुविधा है नहीं है, इसका एक सिंपल सा अगर फॉर्म बनाए तो क्या हम इसको 10 शहरों में नहीं कर सकते? तो कुछ एक कॉमन तरीके से हम ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती है जिसपे हम काम करें। सो आई एम थ्रोइंग कि आप लोग आइडिया दें एंड इसको हम थोड़ा टाइम लेके वी विल कन्वीन अगेन वेयर वी हैव लिटिल मोर टाइम एंड स्पेस एंड विल वर्क दिस आउट। सो Apekshita, Soumyada, and maybe Raghuji to give quick one pointers and your concluding thoughts, and then maybe we can take some more other suggestions from the crowd. Ji. Yes, Please. Apekshita would like to go first. Yeah. Please Go go ahead, ahead, Apekshita. Soumyada. We are following the Okay. alphabetical Okay. order. So Okay, sure. बहुत please. क्विकली 6-7 सजेशन देना चाहूंगी अलग अलग लेवल्स पे। तो सबसे लोकल लेवल पर जो हम बात कर रहे हैं, साइट इंस्पेक्शन का आइडिया बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर। दूसरा, आप डोमेस्टिक वर्कर्स की हम बात करें, हम यहाँ डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं और जब अवेयरनेस उनकी बढ़ी तब डोमेस्टिक वर्कर्स ने हमसे खुद कहा कि अब हम वापस अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाके ये कहेंगे कि आप हमें अपने घर का वॉशरूम हमें यूज करने दें, आप हमें पानी दें, हमें उबलता हुआ पानी अपने साथ बोतल में लाने की जरूरत नहीं है। तो अवेयरनेस स्पेसिफिक लोगों के साथ जब आप करें और उनके साथ आप जुड़कर काम करें तो हमें बहुत लोकल स्टेज पर भी चेंजेस दिख सकते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे करें, आप डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ करें, आपके सिक्योरिटी गार्ड के साथ करें, आपके साथ आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वो काम शुरू करें, उसके बाद हम उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज पार्क्स का, जैसे अरविंद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पार्क्स कम से कम खुले रहें क्योंकि कूलिंग सेंटर्स की भी जरूरत है, लेकिन कूलिंग सेंटर्स जब तक बनेंगे क्या हम पार्क्स को कूलिंग सेंटर्स बना सकें और उस पर एक्सेस पे हम काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि पार्क्स और मॉल्स में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आसानी से जाने दिया जा सकता है, तो उस पर क्या हम काम कर सकते हैं। ये लोकल की बात हो गई। म्यूनिसिपैलिटी पे किसी का सजेशन आया, किस तरीके से हम म्यूनिसिपैलिटी के साथ काम करके पानी की शेड की व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं, इस पर काम करने की भी बहुत जरूरत है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, जो हम लार्जर पॉलिसी नीतियों पे काम कर सकते हैं। बीओसीडब्ल्यू का सुझाव आया किसी का, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि बीओसीडब्ल्यू के पास इतना ज्यादा वेलफेयर फंड पड़ा है, उसका क्या काम हो रहा है, उस पर हमें सवाल उठाने की जरूरत है। इसका हमारे पास उदाहरण है एयर पोल्यूशन ग्रैप, जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता है, वो पैसा जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम नहीं कर पाते तो उनको मुआवजा कॉम्पेंसेशन की तरह मिला जाता है। क्या ये हीट पर भी हो सकता है? दूसरा, OSH कोड में हीट स्ट्रेस लाना बहुत जरूरी है ताकि हम जब हीट सिलिकोसिस के कैंपेनिंग से हम लर्निंग्स लेते हैं, हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रोक पर हम काम कर सकते हैं। अगर OSH कोड में हम हीट स्ट्रोक एज अ डिजीज और हीट रिलेटेड इलनेसेस एज अ डिजीज को हम ला पाए, तो इस तरीके से हम लोकल स्टेट से लेके नेशनल लेवल पर बहुत सारी कैंपेन्स में हम जुड़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी और अपने खुद के एक्सपर्टीज के ऊपर, और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो हम साथ में मिलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत जल्दी ये बोलना था। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने कुछ लोगों के नाम डाले हैं, अगर साथी लोग उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करें, और कई शहरों के नाम डालें जो यहाँ पर साथी मौजूद है वहां से, तो वो हम कर सकते हैं। सौम्यदा, आपके क्विक पॉइंट्स। हाँ, मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव होगा यदि हम पहले शहर लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे, सिटी लेवल पे करें, क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, ऑफकोर्स स्टेट में भी हम लोग एक स्टेट में कम से कम इसको नोटिफाइड डिजास्टर बुलवाने के लिए सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट रेस्पॉन्स म्यूनिसिपैलिटी का होता है और लोकली इन्फ्लुएंस भी होता है। एक तो वो है। दूसरा, कुछ जगह में एक सिर्फ पार्क्स ना देखे, एक पब्लिक ऑडिट करे। ये हीट एक्शन प्लान, ऐसे तो हीट एक्शन प्लान बहुत ही इनकम्प्लीट है और बहुत ही अधूरा है, लेकिन कम से कम हीट एक्शन प्लान और इंक्लूडिंग एनडीएमए के जो गिग वर्कर्स का गाइडलाइन है वो भी काफी अधूरा है। दैट्स नॉट बेस्ड ऑन रियल साइंस, बट स्टिल इट हैज सम पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। तो इसका एक पब्लिक ऑडिट शहरों में किया जाए, क्योंकि ये हम लोग जब हमारा NAPM तमिलनाडु से बात हुआ रिसेंटली, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, एंड वी स्टार्टेड आवर फ्रेंड्स देयर, कॉमरेड्स देयर, एंड वी फाउंड दैट Parks municipality is saying is open from 5 a.m. to 8 p.m. But the Morning Workers Association, they are locking the parks after 9:30 once the privileged class has done their morning work. So
in the audit, these kind of things can come up. We saw this in Ghaziabad city. I have seen this close to my thing. I highlighted it. So one is, then every place, is it available? Is the first thing, is the even the information available? Even though it is the इनकरेक्ट और आधा इंफॉर्मेशन है, क्या इसका इंफॉर्मेशन वर्किंग कम्युनिटी के क्लास के पास पहुंच रहा है कि कब स्थिति खराब हो रहा है, कब आपको क्या करना चाहिए? इफ दैट इज नॉट रीचिंग, देन एक्शन कैसे लेंगे, किसके आधार पर, ट्रिगर क्या होगा? That's another kind of audit that we should do, because when we do a public audit, then all these points, क्या वहाँ फ्री पानी का, ठंडा पानी फ्री में उपलब्ध है क्या नहीं है बड़ा साइट में? जैसे किसी ने बात किया, हमारा हाउसिंग सोसाइटी में भी फ्री कूलर लगा है, तो गिग वर्कर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, जो सफाई का लोग है, सभी उससे भरते हैं. बट वेरी फ्यू सोसाइटीज एक्चुअली RWS allow that. So one is those kind of campaign, one is doing a public audit, and third, मुझे let me just give this little bit of caution. Everybody talked about tree cover. Tree cover has a limit. Tree cover cannot give thermal comfort beyond a certain point. Just a few days back, मैं अभी रत्नागिरी में हूँ. One of my friends who is an activist here, who is living there for 30 years almost, he said, I am unbearably hot and मैं शायद collapse कर जाऊंगा. He lives in an almost island environment in the estuary of Karla River. The condition of heat and relative humidity is extremely important. If anybody has gone to Amazon, I have been to the Amazon twice. जिस शहर में इस बार बेलेम में कॉप हुआ, वहाँ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल वेदर होता है दिन में, एंड इट इज नेक्स्ट टू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. तो प्लीज डोंट बी मिसलेड, जो पेड़ लगाने से सब कुछ हो जाएगा. पेड़ का शेड में ठंडा होता है, द हीट डू नॉट डिसअपियर. पेड़, ट्री कवर्स ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं. फॉर ड्राई सिटीज, मेंटेनिंग tree cover is a huge drain on the available water resources. किया जा सकता है, recycled water करो, वो करो. So please don't try to have a silver bullet. There are at least 10 or 12 different factors that build up the heat in the city, and that creates an uncomfortable, very bad condition. तो हमें integrated way रे holistic view लेना पड़ेगा. सिटी में हीट कैसे बिल्डअप हो रहा है, डिसिपेट क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्लानिंग ये होना चाहिए. ट्रीज डू हेल्प, बट दे हैव अ वेरी क्लियर लिमिट, एंड दे डोंट एक्चुअली हेल्प इफ द ह्यूमिडिटी इज ऑलरेडी हाई. जी, थैंक यू सौम्यदा. ठोस सजेशंस, आइडियाज. रघु जी, टू गेट योर पॉइंट्स कि हम क्या कर सकते हैं. अब तक यह आया कि वर्कर डिमांड्स आर्टिकुलेशन, सिटी लेवल पे काम करने की जरूरत, पार्क ऑडिट्स को थोड़ा और एक्सपैंड किया, हमने बोला पब्लिक ऑडिट पे कर सकते हैं, छोटा सिंपल चीज जो हम साथ में करें. आपका क्या और सुझाव है? मैं जस्ट एक ऐड कर दूं, दिल्ली में एक पब्लिक ऑडिट का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू हेल्प इन दैट, एंड चेन्नई एंड दिल्ली में थ्रू NAPM एफर्ट्स, तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन, दैट इज वेरी वेरी वेलकम. Absolutely. उसको हम दूसरे शहरों में, we can take it to the other cities using the same methodology. So that's very good, sir. Thank you. Raghu ji, are you there? Yeah. Yes. I'll just highlight 3 points. Yes. One is, I think, in 1 minute, sir. Then I think we will close. Yes. So one is, I think that activities at the city level and the state level are crucial. National level ठीक है, एक लेवल पे वो असिस्ट करता है, पर जितना आपको सिटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे रेस्पॉन्स मिलेगा, मेरे ख्याल से उसका असर बहुत होगा. I want to emphasize that at the policy level as well as at implementation level. Policy पे लिखवाना एक बात है, पर उसको लागू करवाना is even more important. The second point I'd like to make is, on the one side, ये हम सरकार से जो मांग करते हैं वो एक तरफ है. दूसरा, ये जो आइडियाज हैं, कूलिंग सेंटर, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन, जितना मैंने देखा है नेशनल लेवल से सिटी लेवल तक, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ए मॉडल कि ये कैसे किया जाए. कोई सोचता है कि मैं एक शामियाना लगा दूंगा जिसपे एयर कंडीशनर भी होगा, जिसपे ये भी होगा, वो भी होगा. फिर वो कॉस्ट देखते हैं और कहते हैं भाई ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मैं केवल शहर में ये 5 लगाऊंगा.
So I think it is a good thing that we can do as a movement, and particularly those of us who are associated with science movements, etc., to think and try and demonstrate some good workable model. What is a cooling center? How do you provide drinking water? What is a water point? इसके कुछ अच्छे मॉडल्स हम बना के दिखाएं and use that as a method to mobilize the public and as a pressure point to the state government or the corporation, etc. That's the second part. Third point, I think, is a lot more work we can do apart from with the government, engaging with government, community level पे engagement, public के साथ engagement मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है. जितना हम अपने आप को भी मदद कर सकते हैं, समाज के अंदर कैसे कर सकते हैं, and to make communities aware not only of their rights and the demands from the government, but of measures that can be taken at the community level, at residential societies level, at RWA level, to provide relief and to assist the vulnerable populations, etc. I think that is also very important for us to do as civil society organizations. Thank you. Thank you. Okay. ये हमारे पास काफी अच्छे ठोस सुझाव आए हैं. We've gotten very good, clear ideas of what could be done. I'm not recounting them, but just listing this down so that it remains and we come back to you hopefully very soon. Those who are interested, please put their details in the chat. We have already quite a few, but I think we will have to sit together and work on worker articulation. एक public audit की बात हुई है, city and state level पे focus करने की बात हुई है, and what we can do with communities, उस पे हम एक बार साथ में काम जरूर करेंगे. So again, taking this opportunity to thank our dear friends and colleagues who are here, and also of course our speakers, Apekshita, Raghu ji and Soumya Datta, thank you for your time, and thank you everyone for such a wonderful discussion on this very hot May day, May 18th. We will meet in June, and hopefully by then we would have connected with some of you and would have worked forward in these points that we have discussed. Thanks. And हम अगले महीने जरूर मिलेंगे. थोड़ा काम करने थैंक्स की बात अरविंद. होगी. अरविंद को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जो ज्वाइन किए सबको थैंक यू. NAPM श्रम की तरफ से हमारे सभी साथी यहाँ पर हैं, श्रम वाले, अकबर भाई, मीरा, और कौन है मैं देख रहा हूँ, याकूब भाई, आप बोले नहीं लेकिन आप हैं हमारे साथ. सो वी नो श्रम के और भी साथी हैं जो श्रम के साथ जुड़े हुए हैं, NAPM के, और हम मीटिंग एंड कर सकते हैं. पर थैंक यू.